मैं सब सर्वप्रथम आलेख सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यूनिवर्सिटी का कुल गीत चलाएं। विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् न चोर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारिकारि विकृते वर्धते नित्यम् विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। शिक्षा दीक्षा की परंपरा से राष्ट्र का हुआ सदा उत्थान। कौशल और नव सृजन से सजा हुआ गौरव अभियान, सजा हुआ गौरव अभियान। ज्ञान विज्ञान की शक्ति से हम नवमंडल में हुए स्थापित। सीखा है इतिहास से हमने नव तकनीकों में हुए समाहित, नव तकनीकों में हुए समाहित। सगम सानि पम गमरि सनि सनि संस्कारों की शक्ति को जब लिया है युवा ने पहचान, हम सब बने राष्ट्र के रक्षक। आओ करे नव भारत निर्माण, आओ करे भारत निर्माण। कला योग विज्ञान विधि का विश्वविद्यालय देता ज्ञान। तन मन और जीवन सुचिता का देता है यह शुभ बलिदान। जन्म लेकर जिस धरा पर शौर्य करता शीश बलिदान। अपनी मेहनत से माटी को सोना कर दे जहाँ किसान। हर की धरा हरियाणा पर स्थापित अपना कुल महान। शिक्षा और स्वावलंबन आओ ऐसे कुल को करे प्रणाम, ऐसे कुल को करे प्रणाम, ऐसे कुल को करे प्रणाम, ऐसे कुल को करे प्रणाम। Good morning, ladies and gentlemen. Myself, Dr. Kuldeep Kumar, Head of the Department Journalism and Mass Communication, Central University of Haryana. I welcome you all in this webinar titled Fake News and Fact Verification with reference to COVID-19. I am grateful to you all for enthusiastically participating with around 500 registrations. I am glad that we have participants from Kashmir to Kanyakumari. May I tell you about the sequence of events planned today? Firstly, we will see a pre-recorded video of Honorable Vice Chancellor. He has been kind enough to share his thoughts with all of us. Because of his prior engagements, he could not join us live. So we have a pre-recorded message of our Vice Chancellor, Professor R.C. Kohad. After this, I will try to sensitize you towards today's topic. That is, what is fake news and how these are generated and what might be the motives. Very shortly, because our eminent speaker shall be talking in detail about it. Now I request Alex sir to play Honorable Vice Chancellor Professor R.C. Kohad's message for all of us. Alex sir, please VC साहब का मैसेज प्ले करेंगे. A very good morning to the distinguished speakers and participants of one-day webinar organized by the Department of Journalism and Mass Communication in collaboration with Google News on initiative on fake news and fact verification. I also welcome the distinguished speakers of the day and other senior faculties from Central University of Haryana and other universities who have joined this webinar. I am very glad to know that around 500 students, teachers and practicing journalists have registered themselves for this webinar. I am sure
which has been chosen today is of interest to all of you, and certainly it will be of great significance for the society. Dear friends, I am happy to see the strength of the participants, because if you organize such seminars physically, the presence is always less, but the online technology has given us an opportunity that you can save your time during traveling, your expenses, and sitting at one place, you can join such seminars and can make use of the experience of the renowned personalities. It's good that you have joined this webinar. I'm also happy to know that today our invited speaker is from Google News, Mr. Nimish Kapoor, who is a senior scientist at Vigyan Prasad and has been working for the last 2 decades in media. He shall be enlightening all of us about such a burning aspect of the news media. And I am very happy to welcome Mr. Nimish Kapoor. I would like to see more such efforts from Dr. Kuldeep Kumar and his faculty and the team members to organize such seminars, calling the established persons from the media, so that our faculty and students can make use of it. Dear delegates, in the current pandemic situation, awareness about the fake news and fact verification has become very necessary, because fake news are misguiding the public. Even otherwise, in other scenarios as well, the fake news creates so much disturbances. Sometimes, of course, it can lead to a disaster in the society. Dear friends, we have moved ahead from times when we used to get news only through certified and registered sources, but the current era of news media has enabled everyone to be producer who can consume and create news simultaneously. The new media platforms, each one of you know, like YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, and many more social media sites have been used by individuals to generate. So, ladies and gentlemen, today in this era we are seeing some crisis of credibility regarding media houses are concerned. Various newspapers, magazines, TV channels are suffering from this crisis of credibility, because when I take classes of media literacy, our students can tell if you can say X, name of an X channel, then they say that this channel is aligned to that party or this party. Then this is true world over, not in even in India. Abroad also is the same case in various democracies. So earlier the only media used to criticize politicians. Now the politicians are also jumping the gun and they are also blaming the media. This gentleman Donald J. Trump is president of United States, and he every now and then comes blazing against the media. Not all the media. He thinks that some media is misreporting things and with some intention. So his quote is there: the fake and corrupt media is so bad for our country, the enemy of the people. He conducted some meeting with people, and the media showed that there was very less attendance, and then he shared the video that there was ample attendance, to say the least. So what is fake news? Fake news is fabricated news. The generator of such misinformation, disinformation, and malinformation is guided by ulterior motives. People have their
inbuilt motives for fabricating things. These are not real news. Some kind of slant is there, some kind of fabrication is there, some kind of attempt to misrepresent facts is there. So according to Claire Wardle, there are 7 types of fake news are there. It may be satire or parody. The writer may write in a humorous way, but he may be making fun of some politician, some policy or whatever, and he has no intention to cause harm. But an illiterate person or a person who has such little knowledge may think that to be a true account of things. Then there is false connection is created between things when headlines, visuals, or captions don't support the content. Because if somebody has to give some news of communal disharmony, they can, if some communal disharmony has happened in Bangladesh, they can give photo here and cause that trouble here also. There is misleading content, misleading use of information to frame an issue or an individual is there. To bring disrepute to some person, such kind of things are done. Then false context is there. When genuine content is shared with false contextual information. So as to make these things look, if something has happened, some joyous thing has happened, that could be turned into a mourning type of thing. Then imposter content is there when genuine sources are impersonated with false and made up sources. This kind of thing is mostly done with images, that some famous personalities' image is superimposed on something else to show them in derogatory things and derogatory positions. Then manipulated content is there when genuine information or imagery is manipulated to deceive, as with doctored photo. Fabricated content is there when the intention is pre-planned, that we will do something like this and that should be reported like that, in that particular manner only. Then there is a popular term post-truth, recently called word of the year. 2-3 years this term has come up. And what post-truth is, it is defined as relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Then media literacy is there. Media literacy is important for each and every one of us. Nimish sir is again and again emphasizing on people should be journalists or professions like this. I believe every person is a citizen journalist. You all observe things, and you, with the advent of social media, you can always report to every kind of platform, and anything you report, if it is newsworthy, do find place in mainstream media. So media literacy is the ability to access, analyze, evaluate, and create media. I always tell my students that if you are studying journalism, that is no specific advantage to you. Everyone can be a good journalist if they are media literate. If they have ability to access, analyze, evaluate, and create media, they are as good journalists as professional ones are. Then there is a media bias. Then you see what I told you earlier, that TV channels, even children can tell this TV channel belongs to that party, this TV channels belongs to that party, because the media bias is very, very, very prominent in these. How people are getting this? Because they have very selective mindset of covering stories. In every day there are millions of stories to cover. They cover their stories which fill their ideology. So the stories that support their ideology, those get reported. So what we call perceived bias or media bias as of the journalists and news producers is within mass media in selection of events and stories that are reported and how they are covered. I am not taking name of any Indian newspaper or TV channel here for safety. For example, if people describe Fox News as conservative and New York Times as liberal, they are reflecting on concept of media bias. Then there is a confirmation bias, is a type of selective thinking or researching and the tendency to interpret new evidence as confirmation of one's existing beliefs or theories. So there are people with religious biases. They would say X religion is bad or Y religion is bad. Theirs is the only best religion in the world. So they will find stories of X and Y religion people
doing some wrong things, and they will confirm their biases. Then there is truthiness, that is believing something to be true from the gut or inside, and using life experiences of learning to make something seem true. This happens because we all say that Ayurveda has all the cures, but Ayurveda doesn't have a cure for every kind of disease. So there are people who would say that even cancer is okay with, if you give some Ayurvedic medicines, every kind of disease can be cured with it. So no kind of medicine or medical therapy is foolproof in itself. Ayurveda has its own advantages in many cases, but not all cases. And also the allopathic medicines also could not cure everything. There are kind of human diseases where Ayurveda is far better than the allopathic treatment. So there are different kinds of treatments available, and because of what I was trying to explain was truthiness. Because I believe something, I will fill in the gaps and say, look, what I believed always is true. Yeah, in today's morning newspaper in India Today has reported that there was one fake news because of COVID-19 where many fake prescriptions are circulating. So this young journalist Arjun Devdia of India Today has fact verified this one prescription slip. You can see this is of Sir Gangaram Hospital. A doctor's stamp is there. Everything looks fine, and this is circulated on WhatsApp and on social media for preventing COVID-19. What it says, as per ICMR guidelines, the contacts of COVID-19 cases should be put in home isolation, even with mild symptoms. It is advised that everybody takes these preventive medicines apart from following social distancing, hand hygiene, and wearing masks. Then there are three medicines are prescribed. Hydroxychloroquine is there, 400 mg once a week. Then vitamin C is there. Then zinc tablet zinc is there of 50 mg once a day. And in case of fever, it prescribed is crocin. So a person who has little knowledge can look through it and say, oh, we should follow it. We should take hydroxychloroquine once a week. But this medicine has very harmful effects on those people who are heart patients like me. Their heartbeat can vary very, very badly, and they may die. And then you see the second tablet, vitamin C, one given a day. Now once given a day, 1 gram once a day. So there is no dosage of vitamin C of 1 gram. So here is the catch. An educated person can see that this might be doctored thing or this is a fake thing. So this journalist has contacted Sir Gangaram Hospital, and they have told that this is a fake letter that is in circulation. So all of us, what we need to how we can spot fake news, consider the source, whether it is truthworthy or not. Then read beyond, then check the author, then supporting sources, check the date, is it a joke, check the biases and ask the expert. And this is what Mr. Nimish Kapoor will tell you in detail in today's lecture. And since many budding journalists are joined with us, so I would request all of you younger people that, dear all, please be politically neutral. If you align yourself to anyone with in any kind of politics, then you should not be in business of journalism. Otherwise, you will sooner or later become a producer of fake news. You yourself will be generating such fake news. So after this such a short presentation, I would like to invite Mr. Nimish Kapoor, and I am grateful to him. He's a long-time friend of mine who has come to deliver our invited lecture from Google News Initiative. He is principal scientist and head of publication divisions and science film festival unit and Indian Science Wire program Vigyan Prasar. He has experience of over 20 years, 16 years as a science communicator. He is editor of Dream 2047 Monthly, that is by
published bilingual in Hindi and English also. A very good magazine for all to read. Please, if you haven't read it, please go through it. Very knowledgeable magazine. Festival Director of National and International Science Film Festival of India. He is Chairman in charge of Official Language Implementation Committee. He is Coordinator of series of national workshops on science filmmaking. Nodal Officer of Vigyan Samachar Project. Member of decision-making bodies with Doordarshan, UNICEF, CEC, NCERT, MHRD. Guest faculty to many universities including ours, Jamia Millia, MCRC, IMC. Resource person in various departments, institutes and councils. He is certified trainer on fact verification with Google News Initiative. So that is precisely he will be telling us about. Earlier he was associated with electronic media with Inadu TV, ETV of Ramoji Film City, Hyderabad. Writer and anchor with Doordarshan and All India Radio. Researcher and writer with Discovery Channel, Z Network during 1998 to 2004, and has produced and directed approximately 1,000 hours of television software network. So there is a lot to tell about him, and the biodata is very long. Better to listen to Mr. Nimish Kapoor. And sir, I am thankful to you on behalf of my university, on behalf of my Vice Chancellor, for accepting our proposal to interact with students, teachers and journalists. And may I now welcome you to please present your talk. Thank you, Dr. Kuldeep Kumar, and I'm grateful to Vice Chancellor, sir, and you and your team. And आपने बहुत कुछ मेरे बारे में बता दिया, उतना नहीं है. तो यहाँ पर ये गुलाम साहब कुछ प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, तो आई डोंट नो, मैं फिलहाल प्रेजेंटेशन अपना शेयर करता हूँ. जस्ट ए मिनट. मेरा प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है कुलदीप जी? सर अब आ रहा है सर, आ रहा है सर जी. ये गूगल न्यूज इनिशिएटिव है और मैं एज ए ट्रेनर जुड़ा हूँ गूगल न्यूज इनिशिएटिव के साथ में, और मैं बाय प्रोफेशन साइंस कम्युनिकेटर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, जो कुलदीप जी ने बता दिया मेरे बारे में बहुत कुछ. उसके लिए बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका, और आप सभी का मैं आभारी हूँ कि आप न केवल हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर बल्कि देश के हर भाग से लगभग इसमें आप लोग सब जुड़े हुए हैं. मैं समझता हूँ कुलदीप जी मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप तक? सर बिल्कुल ऑडिबल है, प्लीज. अच्छा, थैंक यू. और आज का जो ट्रेनिंग का एजेंडा है कि हम फेक न्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करें, खासतौर पर कोविड-19 के समय में, और जो फेक न्यूज है या मिसलीडिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन है, जो भी कुलदीप जी ने भी बहुत सारे एग्जांपल दिए, उसको कैसे पकड़ें, उसको चेक कैसे करें, ये बहुत जरूरी है. जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, वो चाहे गूगल न्यूज इनिशिएटिव है और भी कुछ टूल्स हैं जिनकी मैं आपको जानकारी दूंगा, तो कैसे हम उनको अपनी प्रैक्टिस में लाएं और अपने रूटीन जॉब में, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, हम मीडिया में हैं, हम टीवी या न्यूज़पेपर में हैं, हम मास कम्युनिकेशन के टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम क्योंकि हमारा वास्ता खबरों से पड़ता है, समाचार हम बनाते हैं, प्रसारित करते हैं, तो क्रॉस चेक व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स, जो भी हमारे पास मैसेज आ जाते हैं उनको हम कैसे क्रॉस चेक करें, एंड टू लर्न अबाउट द टूल्स फॉर फोटो एंड वीडियो वेरिफिकेशन टू सेव टाइम एंड टू कंफर्म द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फोटो एंड वीडियो. गूगल न्यूज इनिशिएटिव ने पूरे दुनिया में ये मुहिम छेड़ी है, और इंडिया में आप देख रहे हैं जैसे अलग अलग जगहों पर ये गुरुग्राम में इंग्लिश में, देन गुरुग्राम में हिंदी भाषा में, देन मुंबई मराठी, बेंगलुरु एंड कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, in various places and various languages, Google News Initiative covered and trained master resource person, training to the trainers. ये कैंप आयोजित किए गए, and 4 big challenges Google News Initiative is dealing with: trust and misinformation, local news, inclusive journalism, and emerging technologies. These are the 4 big challenges what we are dealing in our media and our our TV and newspapers. This GNI online training center is there because in this 1 hour orientation, we can say this webinar is just for orientation to you regarding the fake news and fact verification tools. But after the webinar, you can go to this g.co/news training, and you can learn many things, and you can generate your certificate also.
and this training was conducted in 55 lessons in 12 languages, and including Bangla, Hindi, English, and some other Indian languages are there. And there are 241 plus trainers trained by Google News Initiative during 2018-19, and more than 16,000 journalists and students of mass communication have been trained by trainers like us, and with these kind of workshop sessions and webinars. So we'll present the fake news, the Indian story first. And that these two sadhus among three killed by mob in Maharashtra. BJP Sikh spoke Maharashtra. Shocking visuals show angry residents of that this village attacking a police team as they try to restore order and rescue the two sadhus and the driver. So these kind of some audio is there, Kuldeep ji. If you can check, somebody is disturbing with some audio. कुछ ऑडियो चल रहा है, अगर हम ये ऑडियो बंद कर दें प्लीज। डॉक्टर एसके तिवारी जी, आपका ऑडियो आ रहा है, प्लीज बंद कीजिए। ओके सर। तो ये र्यूमर, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का आपने देखा होगा कि किस तरह से मुंबई में जो कुछ दिनों पहले रेलवे स्टेशन पर भीड़ जुटी जब लॉकडाउन था, और किस तरह से आनंद विहार के रेलवे स्टेशन पर ये भीड़ जुटी। तो ऐसे जिस तरह से ये भीड़ें जुटती हैं और जिस तरह से र्यूमर फैलते हैं, हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी प्रबल है, इतना तेजी से मैसेज फैलते हैं, जो कुलदीप जी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी आपको मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। कुछ उदाहरण, सम एग्जांपल आई विल कोट दैट फेक न्यूज जो है ना, वो डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी टू एक्सेप्ट द फैक्चुअल न्यूज। जब हम फेक न्यूज को एक बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन हम वो जो रियल न्यूज है उसको एक्सेप्ट करने में हमको मुश्किल होती है। देन गणेशा ड्रिंकिंग मिल्क, ये आज से 25 साल पहले इंडिया में बीबीसी ने इसको ब्रॉडकास्ट किया था। उस समय बहुत सारे चैनल नहीं थे 25-30 साल पहले। और फेक न्यूज ऑल्सो, जंक न्यूज, सीडो न्यूज, हॉक्स न्यूज इज अ फॉर्म ऑफ न्यूज कंसिस्टिंग of deliberate disinformation or hoaxes spread via traditional news media, print, digital, broadcast, social. अब ये विजुअल आप देख रहे हैं, more extreme cases it can spark riots and make an incendiary situation worse. ये एक फिल्म का दृश्य है, ये इसका कोई रियल सीन से मतलब लेना देना नहीं है कि ये महिला उत्पीड़न भी नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम झगड़े भी नहीं है। लेकिन आप अगर डालेंगे वेस्ट बंगाल बसीरहाट रॉयट्स गूगल में, तो ये आपको दृश्य दिखाई देगा और बहुत सारी खबरें दिखाई देंगी जिसमें आगजनी भी हुई, वहां पर जान माल का नुकसान भी हुआ, बहुत सारे उपद्रव दंगे हुए। ऑडियो आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम सभी लोग। अगर आप अपना ऑडियो बंद कर दें, जो भी लोग जिनका ऑडियो माइक ऑन है वो ऑफ कर दें प्लीज। आलेख सर, आप भी प्लीज जिनका ऑडियो ऑन है उनका प्लीज ऑफ कीजिए या फिर मीटिंग से हटाइए। अब ये एक खबर आई कि मैंडरिन जो है, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड मैंडरिन एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। अब पाकिस्तान एक्चुअली स्टार्टेड ए course, a small study material they developed for their army personals to train them in Mandarin language just to talk with their Chinese counterpart. There is nothing such official language in Pakistan. Mandarin is China's language. But our news channels, Republic TV, News 18, DNA, Times Now, and so many covered this kind of news that Mandarin is now Pakistan's official language. So this kind of challenges, विश्वसनीयता की जो ट्रस्ट की बात की कुलदीप जी ने, दलाई लामा ने बोला कि महात्मा गांधी हमारे सपने में आए थे, और उसके बाद लोगों ने ये इमेज क्रिएट कर दी, दलाई लामा, बालक दलाई लामा विद महात्मा गांधी, जो फेक है, जो इस ओरिजिनल इमेज में, महात्मा गांधी की ओरिजिनल इमेज में दलाई लामा को चिपका दिया गया लाके। तो ये इस तरह का चीजें हम आराम से अपने कंप्यूटर पर बैठ के कर सकते हैं। और ये ओरिजिनल है, महात्मा गांधी की अकेले की इमेज है। जब 1931-32 में महात्मा गांधी लंदन गए थे, उस समय के ये फोटो है जो प्रधानमंत्री कार्यालय इंग्लैंड ने इसको जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल पे, और इसको बीबीसी, गार्जियन और बहुत सारे समाचार पत्रों ने कवर किया है। और ये मॉफ्ट है और ये ओरिजिनल पिक्चर है बालक दलाई लामा की। अब यहाँ पर ये देखें कि हाफिज सईद और मोदी, तो इस तरह के बहुत सारी फेक इमेजेस दिन रात हमारे सोशल मीडिया में आ रही हैं, और कोविड काल में और ज्यादा आने लगी हैं। और जबकि ये ओरिजिनल इमेज है जिसमें जो है वो
नवाज शरीफ से मोदी जी हाथ मिला रहे हैं। तो ये नेहरू को यहाँ पर डांसिंग गर्ल्स के साथ में चिपका दिया गया। ये ओरिजिनल पिक्चर है जिसमें नेहरू का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया कि लिंगायत लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है एंड लिंगायत कैथोलिक चर्च खोल दिया गया है। और ये र्यूमर ने, ये फोटो ने बहुत हमारा कर्नाटक विधानसभा में, असेंबली में हंगामा किया। तो ये भी इज नॉट करेक्ट और ये ओरिजिनल फोटो है आवर लेडी ऑफ डॉलर्स चर्च। ये फोटो आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग नेता बैठे हुए हैं। वन फोटोग्राफ सेवरल क्लेम्स। और इस फोटो में जो ओरिजिनल है वो पहले वाली है जिसमें कुर्सी खाली है। और ये फोटो है जर्मनी में जो G20 समिट हुआ था 2017 में, उसका ये फोटो है। इसमें आप किसी को भी बीच में बैठा सकते हैं और आप खुद को भी इसमें आप सीट में एडजस्ट कर सकते हैं बीच में। तो ऐसे काम हो रहे हैं और हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ऑफिस में ये किसी मुगल बादशाह की फोटो लगी हुई है, जबकि ये गलत है। ये ओरिजिनल जो फोटो है वो महात्मा गांधी की है। तो कोविड-19 की हम बात करें, डीलिंग विद फॉल्स क्लेम्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। जो कोरोना वायरस द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन आवर लाइफ, अभी तक मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई है जो अब हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष होते हुए। और कोविड-19 जो है, वायरस जो है वो जो ट्रांसमिट होता है वो सबको पता है कि खांसने से, छींकने से, सांस लेने से जो हमारे थूक के कण या जो हवा बाहर निकलती है हमारे मुंह से, उसमें ये ट्रांसमिट हो सकता है। और हमको ये नहीं पता कि अभी तक इसका पेशेंट जीरो कौन है, ये कहाँ से शुरू हुआ, अभी तक इसमें रिसर्च चल रही है। पुख्ता प्रमाण, पुख्ता जानकारी अभी आनी बाकी है। और इसका सोर्स कौन है, वो चमगादड़ है, मनुष्य है, कहाँ से ये आया, इस पर भी अभी तक रिसर्च चल रही है। अब हमें जानना है कि हम कोविड-19 के बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। ये हम उन फेक न्यूज पर डिस्कशन से पहले जान लें। इट स्टार्टेड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ WHO। फर्स्ट केस इन चाइना केम आउट ऑन 31 दिसंबर 2019। 11 मार्च 2020 को WHO डिक्लेयर्ड एन एपिडेमिक, पैंडेमिक, and it is spread by an infected person coming into contact with other people. It also spread by coming in contact with an infected person, object, etc. In the same way, there are many more and no rescue drug yet. Many clinical trials are in progress and दवाइयों पर, वैक्सीनेशन पर लगातार काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है। और हम क्या जानते हैं कोविड-19 के बारे में कि इन इंडिया द फर्स्ट केस केम to light in Kerala 30 January 2020 originating from Wuhan. नेशन वाइड लॉकडाउन फ्रॉम मार्च 24, 2020, जो फिलहाल अब अनलॉकडाउन के नाम से हमारे बाजार और घर खुल गए हैं, फिलहाल दफ्तर खोले जा रहे हैं। वी डू नॉट नो येट अबाउट कोविड-19। हाउ लॉन्ग डज द वायरस सर्वाइव ऑन द डिफरेंट सर्फेसेस। अलग अलग दावे किए गए हैं, कुछ छोटे मोटे रिसर्च पेपर सामने आए हैं जिस पर यह बताया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस अध्ययन अभी नहीं आया है जो ये पुख्ता कर पाए कि ये आपके शरीर में, आपकी त्वचा पर, ये लोहे पर, लकड़ी पर कितने समय जिंदा रहता है, प्लास्टिक पर। Is there a possibility that the patient has recovered will become infected again? क्योंकि जो आज समाचार आया है, गुलजार देहलवी साहब जो उर्दू के कवि थे, पद्मश्री, वो सही हो गए थे 93-94 साल की उम्र में, अपने घर आ गए थे, लेकिन आज उनका कल देहांत हो गया कुछ समय के बाद। जिस भी कारण से हुआ हो सकता है कि वो फिर संक्रमण पैदा हो गया हो। तो अभी what exactly does a virus begin to spread to the vector virus? Question mark. और पेशेंट जीरो और उसका जो सोर्स है ये भी अभी तक क्वेश्चन मार्क है। Everyone claims to know the following: easy quick fix solution, simple home remedies, virus behavior, conspiracy theory, origin of virus, treatment plan, reacted to COVID, whether it is an explosion of information epidemic or fake news, jisko the real problem with false news, it is not only that fake news makes people believe false things, rather it reduces the chance of people accepting the true information. क्योंकि जो सर गंगाराम हॉस्पिटल का लेटर हेड हमारे पास आया, हमने उसको पढ़ा, आगे भी डिसेमिनेट कर दिया और वो वायरल हो गया, जबकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये किसी ने मेरे लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया है, उसको बहुत आसानी से फोटोशॉप किया है, उसमें टाइप या हैंड रिटन कुछ इन्फॉर्मेशन फर्जी लगाई गई है या गलत लगाई गई है, वो डॉक्टर का कोई भी क्लेम उसमें नहीं है। अब how misinformation works: rumor spreading material shared online, social media, WhatsApp, panic, anxiety ये पैदा करते हैं। अब misleading information, people's reaction to misleading information and ultimately damage to society. तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन बनती है, डिस इन्फॉर्मेशन बनती है और ये हमारी सोसाइटी को डैमेज करती है।
अब यहाँ पर जो मिस इन्फॉर्मेशन है और डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन यानी आपको ये नहीं पता कि ये सही है कि गलत, और आपका ये कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और आप ये बगैर सोचे समझे किसी को गलत इन्फॉर्म कर रहे हैं, यानी आप लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है और आप जानबूझकर ये गलत इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप डिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, डिस इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को। तो ये कितने तरीके का होता है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन? मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत प्रस्तुतिकरण, भ्रामक, मिसलीडिंग, जो कुलदीप जी बहुत कुछ बता चुके हैं इसके बारे में, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, फैक्चुअली इनकरेक्ट, तथ्यात्मक रूप से गलत। बहुत सारी गिलोय, अश्वगंधा, लहसुन, हल्दी, प्याज के बारे में समाचार आ रहे हैं, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। जो ये बताया जा रहा है कि ये कोविड-19 को खत्म कर देंगे, मार देंगे, बिल्कुल नहीं। वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जिससे कि कोविड-19 का संक्रमण की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन ये कहना कि हल्दी, लहसुन या गिलोय खाने से कोविड-19 खत्म हो जाएगा या मर जाएगा, जब तक कोई स्टडी नहीं आ जाती हमारे सामने, तब तक हम ये नहीं कह सकते। मैनिपुलेटेड कंटेंट, सामग्री से छेड़छाड़, अनसाइंटिफिक क्लेम्स और आउटराइट लाइज, पूरी तरह से गलत झूठ बोलना, ये सारे जो हैं वो टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन है। और जो डीजी हैं WHO के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग एन एपिडेमिक, वी आर फाइटिंग एन इन्फोडेमिक्स। हम जो भ्रामक सूचनाओं की जो सुनामी आ गई है, उसका जो महामारी फैल गई है, सूचनाओं की, गलत सूचनाओं की, हम उससे मुकाबला कर रहे हैं, उसके लिए हम उससे परेशान हैं। अब कोविड-19 का जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया में किस तरह से फैला है। जैसे मैंने बताया कि ईटिंग अनियन कैन प्रिवेंट कोरोना वायरस, ये भ्रामक है, मिसलीडिंग है। प्याज खाने से कोरोना वायरस को नहीं रोका जा सकता। प्याज में, लहसुन में, हल्दी में, हमारी वनस्पतियों में औषधीय गुण बिल्कुल हैं, किसी में रोगाणुरोधी गुण हो सकते हैं। अलग अलग स्टडीज हो रही हैं, लेकिन ऐसी कोई स्टडी नहीं आए सामने जिसमें बताया गया हो कि ये कोरोना वायरस को रोक सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये बात तय है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, और इसमें जो भी इनके अवेलेबल अध्ययन हैं उन पे ये काम बिल्कुल करेंगे। लेकिन कोविड-19 से इसका सीधा संबंध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। एस्पिरिन कोरोना वायरस संक्रमण को ठीक कर सकता है, ये भी तथ्यात्मक रूप से गलत है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कोविड-19 से, इसको खत्म करने से या ठीक करने से कोई संबंध नहीं है। गाय के गोबर और गोमूत्र से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है, ये भी तथ्यात्मक रूप से गलत है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ऐसा कोई अध्ययन हमारे पास नहीं है। मांस का सेवन से कोरोना वायरस का संक्रमण होता है। हमारे पोल्ट्री फार्म को खत्म कर दिया गया, मुर्गियां जो हैं वो जिंदा दफन कर दी गई, मांस के व्यापार ठप हो गए, जबकि WHO ने कहा है कि आप मांस को पका कर खाएं। एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, मांस के सेवन से कोविड-19 का संक्रमण नहीं होता, ऐसे अध्ययन हमारे कहते हैं। यह नक्शा दिखाता है कि वुहान निवासियों ने बीमारी के प्रकोप के बाद पूरी दुनिया में कैसी यात्रा की है, जिससे विश्व स्तर पर बीमारी फैली है। अब ये नक्शा एक ओरिजिनल नक्शा है, अब इसको नेट से उठाया गया और इसमें एक गलत सूचना दर्ज की गई कि वुहान से इस तरह से प्लेन रवाना किए गए और लोगों को रवाना किया गया। ये गलत प्रस्तुतिकरण है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इमेज का। नमक के पानी या सिरके के पानी से गरारे करने पर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हो सकता है, ये भी भ्रामक है। अब आपके अगर गले में खराश है, गले में दर्द है, तो आप गरारे कल भी करते थे, आज भी करिए और कल भी करेंगे। लेकिन ये दावा कि वो सिरके से या नमक के पानी से गरारे करने से ये संक्रमण से बचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संक्रमण आपको जो है मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है, घर में रहना है, लोगों से दूरी बनाए रखनी है, तब आप बचेंगे, ना कि आप गर्म पानी के गरारे करने से बचेंगे। सोना बाथ या हम जो प्राकृतिक स्नान में कटी स्नान करते हैं या हेयर ड्रायर से गर्म हवा से कोविड-19 रोक सकता है या ये उसका इलाज करेगा, ये भी एक गलत इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। क्योंकि सोना बाथ या हमारे जो नेचुरोपैथी में जो स्नान होते हैं उनके फायदे अलग तरीके से गिनाए जाते हैं, कोविड-19 से उनको मत जोड़िए, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये एक चित्र दिखाया गया कि कोरोना वायरस के पीड़ितों का सामूहिक दाह संस्कार हो रहा है चीन में, वुहान में, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। ये पिक्चर हो सकता है कि ये चित्र सही हो, लेकिन इसको सामग्री से छेड़छाड़ करके एक कहानी बनाकर प्रस्तुत किया गया। तो आप देख रहे हैं कि कितने तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन हमारे समाज में फैलती है। डिटॉल ने दावा किया कि उनका जो ये लिक्विड है डिटॉल, ये कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है,
जो कि ये दावा गलत है और इनको रिप्लेस करना पड़ा, ये मिसलीडिंग है। तो अगर सूचना इतनी अच्छी है कि सही लग रही है तो शायद ये सच नहीं है, ये आप मान के चलें। इफ द इंफॉर्मेशन इज सो गुड दैट इट लुक्स करेक्ट देन इट इज प्रोबेबली नॉट ट्रू। ये थंब रूल है। हाउ वुड यू रिएक्ट if you get this kind of information? Here to easy remedies for the treatment of coronavirus infection. बहुत आसानी से आप उपाय के बारे में सुनते हैं, आप उस पर भरोसा करने लगते हैं और आपका रिएक्शन क्या होता है? आप उस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड कर देते हैं। आप ऐसा मत करिए। अब उसको चेक करिए, एक बार उसको देखिए, उस पर वेबसाइट से, सोर्सेज से चेक करिए। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के आसान तरीके पता चले हैं आपको। अगर वो आसान तरीके क्या WHO की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं? क्या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं? क्या भारत का जो हमारा ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसकी वेबसाइट पर हैं? मैं कुछ वेबसाइट्स के पते आपको शेयर करूंगा, अब वहां से सारे तथ्यों को जांचें, परखें, उसके बाद आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कुछ बहुत कष्टदायक सूचना आपने पढ़ी हो कि कोरोना की वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। रीड सम वेरी annoying information about the health condition that is caused by corona. आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उसको कंफर्म करें, पुष्टि करें, अगेन उसको रिकन्फर्म करें, उसके बाद आगे बढ़ाएं, उससे पहले आगे ना बढ़ाएं। इंफॉर्मेशन फॉर्मेट क्या हो सकता है? जो तस्वीर है, फोटोग्राफ है, वीडियो है, टेक्स्ट है, साउंड है, इतने तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है। कुलदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है क्लियर सबको? फोटोग्राफ है, वीडियो है, टेक्स्ट है, साउंड है। अब साउंड को पकड़ने के लिए ऐसा कोई टूल हमारे पास हाल फिलहाल में नहीं है। तो साउंड जो होती है, कोई भ्रामक मैसेज आ गया, आप उस मैसेज में ये उसकी भाषा पर ध्यान देंगे कि जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है। क्या वो कोई चेन्नई का व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है, या कोई अमृतसर का रहने वाला कोई पंजाबी व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि वो लाहौर की पंजाबी बोली जा रही है, या वो भोजपुरी जो है वो बिहार की है या बनारस की है। तो आप यहाँ से ये पकड़ेंगे कि वो जो भाषाई जो उच्चारण है, जो उसका डिक्शन है, जो टोन है, वो बनावटी है या नहीं है। अगर वो सही भी आपको लग रहा है तो साउंड को पकड़ना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन सामग्री जो है, टेक्स्ट है। अब जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपने देखा, सर गंगाराम का जो प्रिस्क्रिप्शन था, तो वो डॉक्टर की भाषा शैली जो है ना, वो इतनी आसान नहीं होती है। उसमें बड़ा आसान शब्दों में, पढ़ने लायक शब्दों में, जो हमारा एक अच्छी सी राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग, क्योंकि सबसे पहला ये आप जान लें कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग इतनी जो है वो इतनी सुविधाजनक नहीं होती है जो उस लेटर में आपको लग रही थी। फिर वीडियो और फोटोग्राफ पकड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। उन टूल्स की हम बात करेंगे और समझेंगे। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, चीजों को नोट करते चलेंगे, ताकि जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तब आप उस चीजों को फॉलो कर पाएंगे। तो हाउ टू वेरीफाई फोटो। फोटो को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास बहुत आसान और बहुत उम्दा टूल अवेलेबल हैं, और उस टूल का नाम है गूगल रिवर्स इमेज सर्च। जो रिवर्स इमेज सर्च हैं वो गूगल के हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो आप जो आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं वो गूगल रिवर्स इमेज सर्च है, उसका आप नाम नोट कर लें। बाकी भी रिवर्स इमेज सर्च हैं, उसके भी बारे में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं गूगल रिवर्स इमेज सर्च की। जब आप इंटरनेट पर जाते हैं, क्रोम का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, तो आपको ये गूगल का जो पेज खोलते हैं आप जब इंटरनेट पर, तो उसमें एक इमेज लिखा हुआ नजर आता है। आप जब इमेज पर क्लिक करेंगे तो इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा जिसमें कैमरा बना होता है। कैमरे पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाते हैं गूगल रिवर्स इमेज सर्च के अंदर। फिर कैमरे पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन खुलते हैं, पेस्ट इमेज URL या अपलोड एन इमेज। अपलोड एन इमेज आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर एक फोटो का URL नहीं होता। क्योंकि कोई फोटो आपके पास व्हाट्सएप से आई है, कोई फेसबुक से आई है, कोई और सोशल मीडिया के माध्यम से आई है, कोई आपके कोई किसी ने आपको ईमेल किया है, कोई आपको इंटरनेट पर कहीं मिल गया है। तो आपको जो भी फोटो है, कोई भी स्रोत, कोई भी सोर्स से वो फोटो आपको मिली है, लेकिन वो फोटो इंटरनेट पर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने कोई फोटो अपने मोहल्ले में खींची और वो फोटो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, तब ये टूल आपके लिए सहायक नहीं होगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अधिकांशतः लोग इंटरनेट से कोई पुराना फोटो वीडियो उठाते हैं, उसमें अपनी एक भ्रामक कहानी लिखते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप उस फोटो को, जो भी आपको फोटो मिली है, उस फोटो को अपने
कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर सेव कर लें, किसी भी नाम से, 1 2 3 4 के नाम से, कोई भी नाम से आप सेव कर लें, और यहां पर अपलोड एन इमेज में जाकर उस फोटो को अपलोड कर दीजिए, और सर्च बाय इमेज का ऑप्शन आता है। तुरंत अपलोड करते ही गूगल इमेज की सर्च करने लगता है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि आपको जो फोटो, इसका जो पहले थंब रूल जान लें, यू कैन टेल इफ एन इमेज इज ओल्ड इफ इट अपीयर्ड अर्लियर ऑन दी वेब। ये जो फोटो है, ये अगर इंटरनेट पर पहले से होगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये फोटो पुरानी है, जो इंटरनेट पर पहले भी कई बार इसको साझा किया गया है किसी और संदर्भ में, किसी और प्रसंग में। हाउ कैन टेल इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट एन इमेज वाज यूज्ड। आप ये बता देंगे लोगों को कि ये जो फोटो है ये पहले भी किस प्रसंग में इस्तेमाल हुआ था, और यू कैन वर्क आउट द सोर्स। उस फोटो का सोर्स भी आप पता लगा पाएंगे कि इसका सोर्स क्या है, ये फोटो ओरिजिनेट कहां से हुई है। अब जैसे महात्मा गांधी विद दलाई लामा की फोटो है, तो उस महात्मा गांधी विद दलाई लामा में मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप पहले महात्मा गांधी और दलाई लामा को अलग अलग करेंगे। उस फोटो का सब्जेक्ट जो है वो महात्मा गांधी है, और उसको आप क्रॉप करेंगे, और क्रॉप आप आसानी से कर सकते हैं। कहीं भी फोटो की जो आपके पास एडिटिंग के टूल होते हैं उसमें आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। उसके लिए एक आसान टूल है जिसे कहते हैं स्निपिंग टूल। सभी लोग नोट कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है आप इंटरनेट पर अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके टाइप करेंगे स्निपिंग, SNIPPING, स्निपिंग टूल। तो स्निपिंग टूल आपके फोटो में खोलेगा सामने, और आपकी फोटो जो है वो जरा धुंधली हो जाएगी। आप स्निपिंग टूल में क्लिक करेंगे, न्यू करके क्लिक करेंगे, तो आपकी जो कैंची है वो खुल जाएगी, और एक कैंची से आप फोटो को आराम से काट सकते हैं अपने मन के मुताबिक। तो हम आप उसको नोट करते चलेंगे। एक तो गूगल न्यूज इनिशिएटिव आपने नोट कर लिया होगा, यानी गूगल में जाएंगे और आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको कैमरे वाला एक पेज खुला दिखाई देगा। कैमरे पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल न्यूज इनिशिएटिव के गूगल रिवर्स इमेज सर्च के अंदर चले जाएंगे। तो गूगल रिवर्स इमेज सर्च में आप फोटो को अपलोड करेंगे, इतना आप समझ गए होंगे। और स्निपिंग टूल के सहारे आप फोटो को एडिट भी कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। वो आपको करना आवश्यक है ताकि आपको फोटो आसानी से पकड़ में आ जाए। तो आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा तो ये आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। और ये एक और टूल है सर्च गूगल विद दिस, ये इसका ये जो आपको टूल मैंने बताया गूगल रिवर्स इमेज सर्च, उसको आप अपने क्रोम में ऐड भी कर सकते हैं। आप गूगल में टाइप करेंगे गूगल रिवर्स इमेज सर्च, और आपको ये एक लिंक खुलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और ऐड टू क्रोम यस करेंगे, तो ये आपके क्रोम में ऐड भी हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप अपने लैपटॉप पर जब आराम से ऑनलाइन कोई फोटो देख रहे होंगे, किसी नेट पर, किसी कोई भी ऑनलाइन ये चीजों पर, तो आप आप राइट क्लिक करते ही आपका जो आप सीधे उस फोटो को गूगल रिवर्स इमेज सर्च के माध्यम से सर्च कर सकेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सर्च गूगल विद दिस इमेज। तो आपको फोटो को अलग से डाउनलोड करने की और काटने छाटने की भी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये भी एक आपको सुविधा है जो क्रोम एक्सटेंशन में आपको मिलती है। ये एक और सर्च इंजन है रेव आई रिवर्स इमेज सर्च। रेव आई रिवर्स इमेज सर्च भी आप इसको क्रोम में ऐड कर सकते हैं, जो ऑनलाइन काम करेगा। लेकिन ये आप ऑनलाइन भी कर लें, और उसके बाद सबसे अच्छा है कि आप ये रेव आई रिवर्स इमेज सर्च है। लेकिन आप फोटो को, अगर आपको लगता है कि ये फोटो में जोड़ तोड़ की गई है, जैसे किसी नेता को बैठा दिया गया, बहुत सारे नेता बैठे हैं कुर्सी पे, खाली कुर्सी पे किसी नेता को लाके बैठा दिया गया है, तो सबसे अच्छा है कि उस फोटो को आप दाएं बाएं से क्रॉप कर लें और फिर सर्च करें आप गूगल रिवर्स इमेज, जो मैंने आपको बताया उसमें जाकर, तो आपको ज्यादा तेजी से नतीजे मिलेंगे। तो जैसे ये फोटो है, ये फोटो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये फोटो दावा कर रहा है कि इटालियन मैन हु हैज लॉस्ट हिज एंटायर फैमिली टू कोविड कोरोना वायरस फाइनली कमिट सुसाइड एट द टॉप ऑफ द होटल, राइट। अब ये सच है कि गलत है आपको पता नहीं। ये फोटो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। ये इटली का व्यक्ति है, और जब हमने इसको रिवर्स इमेज सर्च में सर्च किया, स्निपिंग टूल से फोटो को थोड़ा सा क्रॉप किया, तो हमको पता लगा कि ये जो है वो इटली का नहीं है। ये फोटो जो है वो स्पेन का है। ये स्पेन में होटल है, ये फोटो इटली का नहीं है। तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये फोटो कहाँ का है। और ये पोस्ट जो है 27 दिसंबर 2019 का है, लॉन्ग बिफोर द कोरोना वायरस एपिडेमिक अराइव्ड इन इटली, यानी इटली में कोविड के पहुंचने से पहले का ये फोटो है, राइट।
और इस तरह के बहुत सारे फोटो आप सर्च कर सकते हैं गूगल रिवर्स इमेज में जाके, रेव आई जो मैंने आपको बताया। और उसी तरह से एक और टूल है टिन आई, TIN टिन आई भी आप नोट कर सकते हैं, टिन आई के नाम से भी एक टूल है। अब ये आता है हाउ टू वेरीफाई वीडियो। वीडियो को सर्च करना भी अपने आप में दिलचस्प है और बहुत चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि वीडियो को चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि वीडियो बहुत सारे वीडियो हमारे पास पड़े रहते हैं और एक एक वीडियो का आप देखेंगे। अब जैसे पुलवामा कांड का एक वीडियो था, तो पुलवामा कांड में एक जीप चलती हुई नजर आ रही थी, आपको आपके व्हाट्सएप में आया होगा, और एकदम से धमाका होता है और हमारी संवेदनाएं, हमारे इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं। तो हम उस वीडियो को हमने आगे भी बढ़ा दिया, उसको वायरल कर दिया। अब वो फोटो को चेक करने में पता लगा कि वो फोटो 2015 का था, कहीं ईरान का था या इराक का था। उसके बाद वो 2015 में वायरल हुआ, 17 में हुआ, फिर उसी वीडियो को 2019 में पुलवामा कांड से जोड़ के वायरल कर दिया गया। तो वीडियो को जांच करना कभी बहुत आसान भी होता है, कभी चुनौतीपूर्ण भी होता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो को कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे टूल हैं जो अब तोड़ निकाला जा रहा है कि हम वीडियो को भी प्रॉपर तरीके से सर्च कर पाएं। तो वीडियो के सर्च के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गूगल रिवर्स इमेज सर्च आपने जो मुझसे अभी सुना, वो आपके वीडियो में भी काम आएगा, क्योंकि वीडियो में आपके जो स्टिल आपको निकालना होगा वीडियो से, और वीडियो से जब स्टिल फोटोग्राफ आप निकालते हैं बहुत आसानी से निकाल आता है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। आपको जो हमारे टूल हैं वीडियो सर्च करने के, वही उसके स्टिल फोटो को निकाल के आपको दे देते हैं। तो उनके स्टिल फोटो जब निकल आते हैं तो आप उनपे गूगल रिवर्स इमेज सर्च लगा सकते हैं। फिर स्मार्ट कीवर्ड सर्च, वो वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल का है, महिला उत्पीड़न का आपने एक दृश्य देखा था शुरू में, लेकिन वहां पर आसपास जो कोई गाड़ी खड़ी हुई है, वाहन खड़ा हुआ है पुलिस का, तो वो देखें आप, वो कहीं बिहार का होगा। कोई दुकान है तो उसमें अंग्रेजी या हिंदी में लिखा होगा, जबकि हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं जो गांव या छोटे इलाके हैं वहां पर बंगाली में भी लिखा रहता है। तो बहुत सारी ऐसे हमको इंडिकेशन कहीं कहीं पे मिल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी होनी चाहिए। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो फोटो देख रहे हैं, उसके आसपास देखें। अब जैसे कि वो लेटर की बात आपको मैंने बताया कि डॉक्टर की इतनी अच्छी राइटिंग, हैंड राइटिंग कभी नहीं होती, वो ऐसी होती है जो हम पढ़ नहीं पाते, जनरली हम ये मान के चलते हैं। तो गुड ओल्ड फैशन पत्रकारिता जो है वो भी हमको ध्यान रखना है, यानी हमें फोटो वीडियो देख के अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारे पास जो टूल अवेलेबल हैं, जो यूट्यूब का वीडियो है, यूट्यूब पे जो भी वीडियो पड़े हुए हैं उनका URL हम यहाँ डालेंगे, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है टूल यूट्यूब डाटा व्यूअर, जिसको एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है वो संचालित करती है। तो यहाँ पर आप जब उसका यूट्यूब का URL डालेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो के स्टिल फोटोग्राफ खुल के आ जाएंगे नीचे। तो इसको भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो स्टिल फोटोग्राफ जब नीचे खुल के आ जाएंगे तो आप उस पर राइट क्लिक करके फोटो के ऊपर गूगल रिवर्स इमेज सर्च आपको लिखा नजर आएगा, और सीधे आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च में उस फोटो को ले जाएंगे, और ये आपका यूट्यूब डाटा व्यूअर गूगल रिवर्स इमेज सर्च के जरिए आपको ओरिजिनल वीडियो तक पहुंचा देगा, और ये बताएगा कि ये वीडियो कहाँ का है, कब का है, झूठा है, सच्चा है। बहुत सारे वीडियो खुलेंगे, आपको पता लगेगा। और इस YouTube डाटा व्यूअर में जो सबसे एक और जो चीज है, ये वीडियो कब पोस्ट किया गया, क्या डेट था, क्या टाइम था, ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन एक चुनौती है, एक समस्या है इसके साथ में, कि केवल और केवल जो YouTube के वीडियो हैं उन्हीं का ये विवरण आपको जी। तो ये जो टूल है इसमें लिमिटेशन है कि ये केवल YouTube के वीडियो के लिए काम करता है। आप जब इसका URL यहाँ डालेंगे नीचे और गो पे क्लिक करेंगे तो वो YouTube का आपको विश्लेषण देगा कि ये वीडियो कब पोस्ट करा गया, किस डेट में, किस टाइम में, और उसके जो थंबनेल हैं, जो स्टिल फोटोग्राफ हैं, वो नीचे खुल जाएंगे। वहां पर आप राइट क्लिक करके गूगल न्यूज, आपको गूगल रिवर्स इमेज सर्च नजर आएगा, और वो आप रिवर्स इमेज सर्च लगा सकते हैं। मैं एक जानकारी आपको देना भूल गया था आरंभ में, मैं माफी चाहता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं उसमें नीचे बहुत सारे लोगो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी गूगल न्यूज इनिशिएटिव और जो आखिरी लोगो है वो डाटा लीड्स का है, यानी गूगल न्यूज इनिशिएटिव और डाटा लीड के सौजन्य से ये आपको प्रेजेंटेशन पहुंचाया जा रहा है। और ये गूगल न्यूज इनिशिएटिव जो पूरी दुनिया में आरंभ हुआ था, तो उसके संग जो इसके भागीदार थे उसके आप नाम नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए फायदे की वेबसाइट्स रहेंगी। आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ मिलेंगी, जो बूम है, इंटर न्यूज है, फर्स्ट ड्राफ्ट है, स्टोरी फुल है, और ऑल्ट न्यूज है। तो ये ऑल्ट न्यूज है, फर्स्ट ड्राफ्ट है, यहाँ पर जाकर आप
बूम है, और इसके अलावा एक और संस्था है विश्वास न्यूज। उन सबके नाम आखिर में आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप जाकर लगातार ये देख सकते हैं जो भी वायरल मैसेजेस होते हैं, वायरल फोटो और वायरल वीडियो, उन सब का ये एनालिसिस करते हैं और इनका रोज का काम है। तो खासतौर पर इंडिया में ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव के नाम से आपको ये वेबसाइट मिलेगी। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको गूगल न्यूज इनिशिएटिव और डाटा लीड्स के सौजन्य से आपको पहुंचाया जा रहा है। डाटा लीड्स में आप देखेंगे, यूट्यूब में भी आप जाके देखेंगे, बहुत सारे प्रेजेंटेशन आपको डाटा लीड्स के मिलेंगे जो आप अपने को एनरिच कर सकते हैं। डाटा लीड्स का काम, डाटा को कैसे आप एनालाइज करें, कैसे प्रेजेंट करें, बहुत सारे काम डाटा लीड्स करता है। तो अब ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। आप अपने गूगल में लिखेंगे एनविड क्रोम डाउनलोड, तो आपको ये वेबसाइट खुलेगी, फेक वीडियो न्यूज डिबंकर बाय एनविड। इसमें आप क्लिक करेंगे, इसको आप नोट कर लें, अभी तक का सबसे जो शक्तिशाली पावरफुल सर्च इंजन है वो एनविड है, जिसमें आपको वीडियो, वो चाहे फेसबुक का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो किसी इंटरनेट की वेबसाइट का हो, कहीं का हो, कोई भी वीडियो है उसका यूआरएल यहाँ पर काम करता है एनविड में। और ये एनविड आपकी बहुत सहायता करता है। कैसे करता है मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये भी आपको अपने क्रोम में ऐड करना है। मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा। जी सर, आप फिर चले गए हैं सर प्रेजेंटेशन से, कुछ आप सर या हिल जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आप पिन कर लीजिए, कुलदीप सर आप पिन कर लीजिए, वो कोई दूसरा प्रेजेंट करता है तब वो चला जाता है एक बार में, आप सर को पिन कर लीजिए। यानी कुछ लोग बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब दिख रहा है आपको? अब आ गया सर, अब सर ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एनविड, ये वेरिफिकेशन प्लगइन फॉर बोथ इमेजेस एंड वीडियो, इसमें ये वीडियो आपका जो वीडियो है उसकी स्टिल फोटोग्राफ आपको मिल जाते हैं, और इसमें आप फोटो के भी लिए काम करता है, लेकिन ये वीडियो के लिए बहुत पावरफुल सर्च इंजन है। इसको आप जरूर नोट कर लें, अच्छी तरीके से सुन लें और समझ लें। ये क्या काम करता है, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो इनहांस्ड मेटा डाटा, रिट्रीव कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट स्टिल फ्रेम्स, आपके जो की फ्रेम है, जो स्टिल फोटोग्राफ हैं, और यूजफुल इंफॉर्मेशन, मैग्नीफायर है इसमें, ट्विटर सर्च है। और सबसे बड़ी बात ये क्या करता है कि आपके वीडियो को पूरा विश्लेषण करके आपको देता है। यानी उस वीडियो को जब शेयर किया गया तो किस दिन किया गया, किस समय किया गया, ये फोटो, ये वीडियो का लाइसेंस फर्जी है कि नहीं फर्जी है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाया आज और वो वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल दिया, तो एक बाय डिफॉल्ट मेरे नाम से एक लाइसेंस क्रिएट हो जाता है कि ये लाइसेंस ट्रू है और वो मेरे नाम से है, और मैं उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। अगर मैं फर्जी नहीं हूं तो मैं डिस्क्रिप्शन आसान भाषा में आराम से लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति फर्जी बड़ा कर रहा है तो वो डिस्क्रिप्शन भी शायद उल्ट जरूर देगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मामला कुछ दाल में काला है। तो एनविड आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिखाता है। फिर ये अगर किसी ने कोई वीडियो को चोरी किया और अपना उसमें कोई कहानी बनाकर कहीं पे डाल दिया, तो एनविड तुरंत बता देगा कि इसका लाइसेंस जो है वो फर्जी है, यानी ये वीडियो कुछ फर्जी है, कहीं से चुराया गया है। और फिर एनविड में एक और सुविधा होती है, आपको ये वीडियो के मालिक तक पहुंचा देगा। आपने क्लिक किया, मैं करके दिखाऊंगा, वीडियो राइट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यूआरएल डाला तो तुरंत आपको उसके मालिक तक पहुंचा देगा कि ये वीडियो जो है वो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, या ये विज्ञान प्रसार का है, या दूरदर्शन का है। तुरंत उसके जो मालिक है उस तक आपको पहुंचाएगा और आपको कॉपीराइट का पता लग जाएगा कि इसका कॉपीराइट या वीडियो राइट किसके पास है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक यहाँ पर मेटा डाटा होता है जिसको हम कहते हैं एक्सिफ डाटा। हम जब कोई भी फोटो खींचते हैं तो हमारा मोबाइल में जीपीएस हमेशा ऑन रखते हैं अगर हम पत्रकार हैं तो, क्योंकि हमें हमेशा फोटो का प्रूफ रखना होता है कि हमने अगर नीरव मोदी का इंटरव्यू सिंगापुर में जाके लिया तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा डेट और टाइम ऑन है, हमारा जीपीएस ऑन है कि हमने सिंगापुर के इस होटल में नीरव मोदी का फोटो खींचा, क्योंकि वो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हमको वो कोर्ट में या पुलिस को प्रेजेंट भी करना पड़े। लेकिन जब नीरव मोदी की फोटो हम पब्लिक में साझा करेंगे अपने वेबसाइट पर, तो हमको वो एक्सिफ डाटा डिलीट करना होगा। उसके लिए उस फोटो को हमें क्रॉप करना होगा चारों तरफ से, दाएं बाएं ऊपर नीचे, और हम ये तसल्ली करेंगे कि उसका मेटा डाटा हमने क्रॉप कर दिया है, क्योंकि हमें जनता को ये नहीं बताना है कि हमने सिंगापुर के कौन से होटल में या कौन से मकान में नीरव मोदी का इंटरव्यू किया।
तो माफ कीजिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पर, मेरी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। तो आपने किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू करा जो मोस्ट वांटेड है, और वो आप पत्रकार हैं, तो पब्लिक डोमेन में आप उस फोटो का मेटा डाटा डिलीट करेंगे, तब आप अपने वेबसाइट पर साझा करेंगे। तो उसके लिए एक और बहुत अच्छा टूल है, उसका नाम नोट कर लें, उसका नाम है जेफरीज मेटा डाटा व्यूअर। जेफरीज आप टाइप करेंगे गूगल में तो आपको जेफरीज मेटा डाटा व्यूअर मिल जाएगा। ये ऑनलाइन काम करता है, और आप अपना फोटो को इसमें ले जाएंगे, अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके फोटो का बही खाता खोल के दिखा देगा, और ये जियो लोकेशन आपकी बता देगा कि ये फोटो आपने कौन से देश में, कौन से मकान में, कौन से होटल में खींचा है। तो आप जब मेटा डाटा डिलीट कर देंगे तब ये इन्फॉर्मेशन जेफरीज मेटा डाटा के टूल में नहीं आएंगी। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये एक वीडियो वायरल हुआ था, मुस्लिम लीकिंग यूटेंसिल्स टू स्प्रेड कोविड-19, जो वीडियो ओरिजिनल है लेकिन इसका कोविड-19 से कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो का जब विश्लेषण किया गया यूविड इनविड सॉफ्टवेयर में, तो हमको पता लगा, ये की फ्रेम निकल के आए। हमने यहाँ पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल किया, तो हमको पता लगा कि ये पड़ताल में दावा बिल्कुल गलत निकला कि ये जो मुस्लिम है ये कोविड-19 फैला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो जो है 31 जुलाई 2018 का है, जिसमें दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग जो हैं अपने धर्म गुरु सैयदना के आदेश पर खाने की बेकदरी ना हो उसकी परंपरा का पालन कर रहे हैं। यानी जो भी झूठन लगी रह जाती है उनके मस्जिद में या कोई भी मदरसे में, तो उस झूठन को ये लोग साफ कर देते हैं, उसको खा लेते हैं। ये इनके यहाँ परंपरा चली आ रही है। अब इसका कोविड-19 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आज की तारीख में ये लोग ऐसा करेंगे तो ये शायद गलत होगा। लेकिन ये वीडियो पुराना है, जिसको कोविड-19 से जोड़ के इनको खामखा बदनाम किया गया। तो ये डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा है कि ये युवक सैयदना के आदेश का पालन कर रहे हैं। सैयदना अली कद्र मुफद्दल सैफुद्दीन दाऊदी बोहराओं के 93वें वर्तमान दाइल उल मुतलक पंथ के सर्वोच्च अधिकारी हैं। और हमें ये वीडियो ट्विटर पर भी मिला। 30 जुलाई 2018 को ये वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है, बोहरा एक बड़ी थाल में साथ में भोजन करते हैं। ये जमात खाने का वीडियो है जहां कई अवसरों पर खाना बांटा जाता है। ये खाने की बर्बादी रोकने की कोशिश का उच्चतम स्तर है। ये इनकी परंपराओं में शुमार है। ये एक बहुत अच्छा टूल है जिसको आप नोट कर लीजिए, ऑनलाइन काम करता है, वॉच फ्रेम बाय फ्रेम। अब जैसे कि हमारे बहुत सारे आजकल डीप वीडियो आते हैं, डीप वीडियो में बहुत छोटा सा पैच वर्क होता है जो हम पकड़ नहीं पाते कि ये कहां पर काट छांट की गई है। एक राजीव शर्मा का इंटरव्यू है कि वो मोदी जी से बात कर रहे हैं और मोदी जी के ऑडियो में डबिंग की गई है। जब आप वॉच फ्रेम बाय फ्रेम में ले जाएंगे तो इसकी खूबी क्या है वो समझ लीजिए। एक ऑडियो विजुअल में, एक मूविंग पिक्चर में 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, तो पिक्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर आप जब URL ले जाएंगे, उसके नीचे एक ऑप्शन होता है, URL डालने के बाद आप वॉच वीडियो को क्लिक मत करिए, आप यहाँ पर URL डालिए, उसके नीचे आप सेलेक्ट करिए कि आपको एक बार क्लिक करने पर ये वीडियो को कितनी तेजी से आगे बढ़ाना है। मतलब एक क्लिक में 2 फ्रेम आगे बढ़ेंगे, 4 फ्रेम आगे बढ़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना संजीदगी से, कितना धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता इसको देखना चाहते हैं। तो आप 2 फ्रेम, 4 फ्रेम, 8 फ्रेम, 10 फ्रेम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे, और जितना फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे फिर आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो उतना ही धीमी रफ्तार से वो वीडियो आगे बढ़ेगा। यानी इसका फायदा क्या है कि जो डीप वीडियोस हैं उसमें कहां पर कॉपी पेस्ट हुआ है, कहां पर कट पेस्ट, कहां पर काट छांट हुई है, ये आपको आराम से ये वीडियो बता देगा कि ये फ्रेम में चेंज हुआ है। यहाँ पर देखिए कोई अपराधी भाग रहा है, उसकी जीन्स का रंग नेवी ब्लू है और अगले फ्रेम में जो है वो जरा डार्क ब्लू है या ब्लैक है, तो वो आपको ऐसे पकड़ में नहीं आएगा वो पैंट का रंग, लेकिन यहाँ पर आपको वो फ्रेम में पकड़ में आ जाएगा। तो वॉच फ्रेम बाय फ्रेम आपके मुताबिक एक एक फ्रेम को आगे बढ़ाता है। एक क्लिक करने पर 2 फ्रेम, 1 फ्रेम, 4 फ्रेम, जो भी आप ऑप्शन देंगे उस हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। अब विजुअल क्लूज जो हैं, कोई भी फोटो में, वीडियो में, वहां की बिल्डिंग है, लैंडमार्क है, साइनेज है, कमेंट्स हैं, नंबर प्लेट है, कपड़े हैं, बोलने का तरीका है, ऑडियो अगर है उसमें, वेदर है, साइनेज है। कोई अगर किसी व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो रहा है दिन के 12 बजे, तो उसकी परछाई जो शेडो है वो अलग तरीके से होगी।
शाम को उसकी शेडो 4 बजे अलग तरीके से बनेगी, दिन में सुबह 9 बजे अलग होगी। तो वो सूरज कैसा है उसके मुताबिक वो शेडो निर्भर करती है। तो और उसमें दावा किया गया है कि ये मर्डर जो है वो शाम को 4 बजे हुआ है और वो वीडियो है वो दिन के 12 बजे का है। आप तुरंत उसके धूप के रोशनी से और उसकी परछाई से पता कर लेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। ये वीडियो 12 बजे का है, 4 बजे का नहीं है। ये वीडियो बंगाल में कोई हंगामा हो रहा है और उसमें भोजपुरी, हो सकता है कि वहां भोजपुरी लोग रहते हों, लेकिन उसमें जो दुकानों के वीडियो, ये जो दुकानों के होर्डिंग लगे हैं या पुलिस की जीप खड़ी है, उसका नंबर उत्तर प्रदेश का है या बिहार का है या एमपी का है। तो वो वीडियो एमपी की पुलिस बहुत ऐसे कम चीज होगी कि एमपी की जो चौपहिया कोई वाहन है वो आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाए, ऐसा बहुत कम होगा। तो ये सारे साइनेज पुलिस की जो साइन होते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस है, बिहार पुलिस है, तो वहां से आप पकड़ सकते हैं कि ये वीडियो बंगाल का नहीं है, ये बिहार का है। तो ऐसे आपको बहुत सारे चीजों पर ध्यान रखना है। Always cross check with websites that contains reliable factual information about the virus infection. ये सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको शायद पता भी होंगी, अगर नहीं पता है तो आप इसका फोटो ले सकते हैं। जैसे कि WHO की वेबसाइट, अब उसमें बहुत सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कोविड के बारे में। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये अमेरिका यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों वेबसाइट जो है वो यूएस की हैं, जहां से आप ताजा तरीन जानकारी ले सकते हैं कि वहां पर क्या रिसर्च हो रहा है, क्या वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार की वेबसाइट है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत सरकार की वेबसाइट है। तो ये यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे वीडियो, ऑडियो, पॉडकास्ट, आर्टिकल, सूचनाएं, बहुत कुछ आपको मिलेगा। एक और वेबसाइट है जो आप देखेंगे, इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्ड टू कोविड-19, indsci.gov.in, indsci.gov.in, और उसके बाद है TIFR की कोविड ज्ञान के नाम से, जो सेकंड लास्ट है। यहाँ पर ये कई भारतीय भाषाओं में सूचनाएं आपको मिलेंगी, और indsci.gov.in में तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, सभी भाषाओं में आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी जिज्ञासा आपके मन में होती है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वेबसाइट्स में मिलेंगे। कोविड ज्ञान में बहुत सारे वीडियो, बहुत सारा पॉडकास्ट, बहुत सारे ऑडियो, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे आलेख, लेख। इसी तरह से विज्ञानप्रसार.gov.in में कोविड-19 का जितना भी शोध हो रहा है देश में, जितना भी हमारे विज्ञान मंत्रालय, हमारे DRDO, हमारा जो IITs हैं, हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी के संस्थान हैं, हमारे ICMR की प्रयोगशालाएं हैं, जो कुछ भी देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी प्रयोगशालाएं हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़ी प्रयोगशालाएं हैं, जितना भी देश में काम हो रहा है उसको साप्ताहिक रूप से एक न्यूज लेटर के फॉर्म में विज्ञान प्रसार निकाल रहा है। आप अवश्य विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पर जाएं और इसका फायदा उठाएं। आपको सारी इंफॉर्मेशन हिंदी में, अंग्रेजी में यहाँ पर मिलेगी। एक और विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पर एक लिंक है विज्ञान समाचार के नाम से और इंडिया साइंस वायर के नाम से। इंडिया साइंस वायर और विज्ञान समाचार, ये दोनों लिंक आपको विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पर मिलेंगे, विज्ञानप्रसार.gov.in। उसके अलावा एक न्यूज बुलेटिन मिलेगा आपको कोविड-19 से जुड़ा हुआ, देश में जो भी काम हो रहे हैं वो आपको हिंदी, अंग्रेजी में यहाँ पर हमारा जो OTT चैनल है इंडिया साइंस के नाम से, उसमें वो सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। तो ये वेबसाइट पर आप नियमित जाएं और अपना जानकारियों में इजाफा करें। 5 सवाल पूछें जब भी आपको व्हाट्सएप मैसेज मिले। वो सवाल क्या हो सकते हैं कि ये संदेश एक फॉरवर्डेड मैसेज है क्या, क्वेश्चन मार्क। ये हम इस पर भरोसा करें, इस पर जो लेटर हेड है, जो लोगो हैं वो तो है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा शैली है, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है, जब तक हम क्रॉस चेक ना कर लें हम विश्वास ना करें। विश्वसनीय सोर्स का हवाला उसमें दिया हुआ है, आप उस सोर्स में जाइए, आप वेबसाइट पर जाइए, क्रॉस चेक करिए और उसके बाद उस पर भरोसा करिए। ये वीडियो, ये तस्वीर वास्तविक है या नहीं है, उसके लिए आपको गूगल रिवर्स इमेज सर्च करना होगा, आपको इनविड में जाना होगा, यूट्यूब डाटा व्यूअर में जाना होगा, वॉच फ्रेम बाय फ्रेम में जाना होगा, तब आप उस पर भरोसा करेंगे। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि आप कैसे उस पर भरोसा करें। पोस्ट में विश्वास करना कितना मुश्किल है, आप इस पर भरोसा अभी करना चाहते हैं तो तुरंत चेक करें। डोंट बिलीव इफ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आर सेइंग इट हैज बीन रिपोर्टेड, क्लेम्ड, उस पर आप भरोसा आसानी से ना करें। आप जब तक क्रॉस चेक ना कर लें, जब तक गूगल रिवर्स इमेज सर्च ना लगा लें, जब तक आप इनविड में ना चले जाएं, जब तक आप प्रोसेस, आप वेबसाइट में ना पढ़ लें,
तब तक आप उस पर भरोसा ना करें। फ्रॉम ए डॉक्टर विद यूनिसेफ और पोस्टेड बाय ए स्टूडेंट इन वुहान, ये सब चीजें हमें आकर्षित करती हैं। यूनिसेफ ने लिखा है, WHO की जानकारी है, गंगाराम हॉस्पिटल से जानकारी आई है, वुहान का छात्र बता रहा है, चाइना का डॉक्टर बोल रहा है, अमेरिका का प्रयोगशाला बोल रही है। बी केयरफुल। ओरिजिन सोर्स का पता जब तक आप ना लगाएं, वेरीफाई ना करें, तब तक आप शेयर ना करें। अब ये हमारे पड़ोसी ने हमें बताया कि आयुष मंत्रालय ने कोई आयुर्वेदिक दवाई बना ली है और उससे 150 मरीज सही हो गए। व्हाट्सएप में ये वायरल न्यूज चली थी जो गलत थी, जो फेक थी। ऐसी कोई भी मंत्रालय का नाम से कोई भी इंफॉर्मेशन आए उस पर विश्वास ना करें। आप जो भी देखते हैं, पढ़ते हैं, उस पर विश्वास ना करने के कारण हैं। वो क्या कारण हैं? फेक न्यूज का एक एजेंडा होता है जो मिथ्या प्रचार करता है और आपको उस पर विश्वास दिलाता है, तथ्यों से छेड़छाड़ करता है। वो इसी में एंजॉय करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, उग्र भावनाएं फैलाते हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम होता है, कहीं समाज में मतभेद हो जाते हैं। वो उग्र भावनाएं फैलाने के लिए फेक न्यूज लगाई जाती है। फेक न्यूज आपको उन चीजों के लिए विश्वास कराना चाहता है जो आपके विचारों के अनुसार होते हैं। आप जो अच्छा ऐसा होता है, अच्छा आप उस पर और भरोसा करने लगते हैं। कहीं उसमें अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंध आस्था, या हमारे वनस्पतियां कि हम स्वदेशी की बात करते हैं, हम गिलोय, हम गोक्षुरु, हम अश्वगंधा, देखो अश्वगंधा ने उसको हरा दिया। देखो ये खबर आई है आयुष मंत्रालय के बिहाफ पे। हम आसानी से उस पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि हम उन विचारों से हमारे विचार तालमेल कर जाते हैं। जो सामने दिखता है हम उस सच उससे परे होता है। एक मैडम ने जो भौतिक विज्ञान की प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा कि ये 9 डिजिट का नंबर है, इससे मोबाइल में कॉल आए तो मत उठाना, अगर उठाओगे तो धमाका होगा और आप मर जाएंगे। और एक वीडियो भी था जिसमें खून निकल रहा था। अब ये सवाल उठता है कि 9 डिजिट से कोई कॉल मिल ही नहीं सकती है, नंबर 1। और वो वीडियो फेक था। आप वो वीडियो डाल के देखें, 9 डिजिट का नंबर प्लस धमाका, आपको मिल जाएगा कि वो वीडियो फर्जी है। फिर उन मैडम को मानना पड़ा कि मैंने जल्दबाजी कर दी और ये गलत करा, ये आपको मैंने साझा करके। तो प्रेषक चाहता है कि आप उस पोस्ट को वायरल करें और समाज में एक गलत मैसेज फैले। विश्वसनीय स्रोत जिन्हें आप सत्यापित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, वो ये सोर्स हैं। WHO का एक व्हाट्सएप नंबर है, +417989318892। You can visit www.who.int। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक व्हाट्सएप नंबर दिया है जो कोरोना की आपको ताजा तरीन जानकारी देता है। वो नंबर है +919013151515। ये सारे नंबर आपके पास उपलब्ध हैं। और ऐसे कोई भ्रामक विज्ञापन आते हैं, उन भ्रामक विज्ञापनों के लिए आपको पता होना चाहिए कि देश में एक विज्ञापन का काउंसिल है, एडवर्टीजमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पे आप सर्च करेंगे, वहां पर आप शिकायत करिए। कोई भ्रामक समाचार आपको दिखाई देता है तो उसके लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है इंडिया में, आप न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन में उसकी शिकायत करिए। कोई गलत समाचार अगर अखबार में प्रकाशित होता है तो आप प्रेस काउंसिल में शिकायत करिए। कोई नाग नागिन का या कोई अंधविश्वास वाला प्रेत का कोई सीरियल आता है, सोप ओपेरा आता है, उसके लिए भी हमारे पास एक काउंसिल है, एक एसोसिएशन है जिसका ऑफिस जो है वो दिल्ली के अंसल प्लाजा में है। आप उस पे आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वो भी दिख जाएगा। तो ऐसे ब्रॉडकास्टिंग के लिए, प्रेस काउंसिल के लिए, हमारे विज्ञापनों के लिए ऐसे बहुत सारे मंच बनाए गए हैं भारत में, जहां पर हम और आप ही शिकायत करेंगे, हम ही उनके बारे में बताएंगे, तब वो उस पर जांच करेंगे, संज्ञान लेंगे। ये कुछ तथ्यों की जांच के लिए वेबसाइट हैं, ha.asia.com, artnews.in, factcheck.afp.com, boomlive.in, विश्वासन्यूज.com। आप इनको नोट कर सकते हैं और इन पर आप डेली आप देखेंगे अपडेट वायरल न्यूज का आपको मिलेगा। तो इनका आप संज्ञान लें। और आपके न्यूज रूम के लिए, आपके अगर मास कॉम के आप छात्र हैं, टीचर हैं, इसको आप नोट कर लें। bit.ly/GNI trainings करके यूपी करके ये वेबसाइट है। ये इसमें आपको सारी कुछ जो आज आपको बातें बताई गई हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। और g.co/news initiative करके आप ये नोट कर लें। ये आपको बहुत सारे जो गूगल न्यूज इनिशिएटिव की जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराएगा। फिलहाल ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर खत्म करके अब मैं आपको गूगल ये माफ कीजिएगा, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगा कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम
अभी सुरेश कुमार जी बता रहे हैं कि ऑल न्यूज रिपोर्टेड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप ये निर्णय आपको खुद करना है। जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है आपको, आप उससे वास्ता रखें ना रखें, लेकिन आप जरूर अपने फैक्ट को चेक करें। मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ देना चाहूंगा, जस्ट ए मिनट। ये फुलदीप जी आपको गूगल स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हाँ सर, गूगल स्क्रीन दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देखिए कि इमेज लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैंने इमेज में क्लिक किया, यहाँ पर एक कैमरा खुल गया, मैंने कैमरे पे क्लिक किया, सर्च बाय इमेज, यानी मैं गूगल रिवर्स इमेज सर्च में आ गया। यहाँ पर दो ऑप्शन है, पेस्ट इमेज यूआरएल और अपलोड एन इमेज। तो मैंने कुछ फोटो आपके लिए पहले से यहाँ अपने वेबसाइट, अपने डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं, लैपटॉप पे। अपलोड एन इमेज पे गया, चूज फाइल पे गया। यहाँ डेस्कटॉप पे मेरे पास कुछ फोटो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पर जो इटली वाला फोटो है, जो आपने देखा था कि इटली के एक युवक ने एक होटल से आत्महत्या कर ली, वो फोटो इटली के नाम से मैंने सेव कर रखा है, उसको मैंने ओपन किया। अब आप देखिए पहला ही जो वेबसाइट खुला, होटल वेलेंसिया सेंटर स्पेन, यानी पहला ही ये खुल गया कि जो फोटो है ये स्पेन का होटल है, ये इटली का होटल नहीं है। वेलेंसिया सेंटर होटल आपको सामने सामने खुल गया, ठीक है। और अब आप और भी इसमें आगे जाएंगे तो आपको ये जो हमारे बहुत सारे ऑल्ट न्यूज और बाकी लोगों ने भी ये जो साझा किया है वो भी आपको दिख जाएगा, आप जब ये इटली की फोटो डाल के सर्च करेंगे। अच्छा, अगर हम आगे कुछ और फोटो पे हम बात करेंगे, जो इमेजेस में हम जाएंगे और हम कैमरे पे जाएंगे, अपलोड एन इमेज पे जाएंगे, चूज फाइल पे जाएंगे, तो मैंने जो महात्मा गांधी की भी फोटो है वो भी इसको यहाँ पर कैप्चर करा हुआ है। अब देखें आप, महात्मा गांधी की फोटो को मैंने क्रॉप करके अलग कर लिया, इसमें आपको जो बालक दलाई लामा है वो नजर नहीं आ रहे। और मैंने इसको ओपन में क्लिक किया तो यहाँ पर ये बहुत सारे फोटो खुले हैं। पहले पेज पर दलाई लामा के संग महात्मा गांधी नजर आ रहे हैं। दूसरे पेज पे जाएंगे तो ये महात्मा गांधी आपको अकेले खड़े नजर आएंगे। और भी आगे जाएंगे 2-3 पेज में, ये डिपेंड करता है कि आपकी फोटो कितनी अच्छी क्रॉप हुई है, कितना अच्छा मेगापिक्सल है और आपने कहां से वो फोटो को उठाया है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। और अगले 2-3 पेज पे जाएंगे और भी 1-2 फोटो और है मेरे पास महात्मा गांधी की। अब यहाँ पर ये महात्मा गांधी कुछ वेबसाइट्स में अकेले नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो अब देखिए जो मैं तलाश रहा था, ये मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ा। 2-3 पन्ने पे दी गार्जियन में महात्मा गांधी अकेले खड़े हुए हैं, तो यानी एक पुख्ता सोर्स मेरे हाथ लगा कि महात्मा गांधी को दी गार्जियन ने अकेले लगाया हुआ है। और बाकी बहुत सारी अनाप शनाप वेबसाइट्स हैं जिन्होंने महात्मा गांधी विद दलाई लामा को लगाया हुआ है। अब मैं आगे गया तो मुझे इकोनॉमिक टाइम्स में महात्मा गांधी अकेले खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे सोर्स हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। डेक्कन हेरल्ड में महात्मा गांधी अकेले खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स हैं जिसमें महात्मा गांधी विद दलाई लामा भी आपको नजर आएंगे, राइट। इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट है और भी बहुत सारे आपको वेबसाइट आगे मिलेंगे। तो अब आप ये आपका विवेक पे आपको तय करना होगा कि भाई ये महात्मा गांधी तो यहाँ अकेले हैं, तो ये महात्मा गांधी के संग ये दलाई लामा कहाँ से आ गए। फिर आप दलाई लामा को भी अलग से सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दलाई लामा जो हैं किसी मोनेस्ट्री, जो हमारे जो भिक्षु जहाँ बच्चे रहते हैं वहां से वो उठाई गई फोटो है और जो इस फोटो के संग उसको क्रॉप कर दिया गया है। इस फोटो का कोई भी संबंध महात्मा गांधी के साथ में नहीं है। आप और भी आगे जाएंगे तो आपको ये फोटो मिलते चले जाएंगे। अब एक फोटो और है महात्मा गांधी की जो मैंने अलग से कहीं और से क्रॉप किया था, उसको भी मैं यहाँ पर डाल के देखता हूं तो नतीजा हो सकता है कि कुछ और मिल जाए। ये कैप्चर 1 के नाम से पड़ा हुआ है। और भी मैं देख लेता हूं कोई और बेहतर फोटो है मेरे पास। तो अब ये गांधी 1 के नाम से है, जो कुछ बेटर फोटो लग रहा है मुझको। लगभग रिजल्ट वही आ रहे हैं। और दूसरे तीसरे पेज पे आपको जो है वो गार्जियन और ये अब इंडिया टुडे ने भी इस फोटो को फेक करार दिया है। देखें यहाँ पर ये इंडिया टुडे में बेबी दलाई लामा विद महात्मा गांधी को आप देखेंगे, वायरल सर्च, इंडिया टुडे ने इसको झूठा करार दिया है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे वेबसाइट भी मिल जाएंगे जो हमारे विश्वास न्यूज है, ऑल्ट न्यूज है, बूम है,
वो भी आपको कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएंगे, जो इस फोटो को जिन्होंने झूठा करार दिया होगा। अब ये देखिए, ये किताब खुल गई, रीडिंग गांधी, जिस पर गांधी की ये इमेज है। अमेजन पे ये किताब उपलब्ध है, और आप इस किताब के जाके सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये फोटो कहाँ का है। तो आपको पता चलेगा कि ये फोटो 1931-32 का है, जिसमें महात्मा गांधी यूके में गए थे और यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस फोटो को जारी किया था। तो ये आपको किताब का कवर भी आपके सामने आ गया, जो अमेजन पे उपलब्ध है। हिंदुस्तान टाइम्स ने फोटो छापा है, आपको अकेले दिखाई दे रहा है। और आउटलुक इंडिया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पुख्ता हैं, प्रमाणित हैं, जो गलती मुश्किल से करेंगे। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है, कोई भी आज गलती कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के समय बहुत सारे चैनलों में ये कहा गया था कि 2000 के नोट में मैग्नेटिक चिप लगी होगी। अब ये न्यूज कहाँ से ये सोर्स मिला, ये भगवान जाने और वो चैनल जाने। तो यहाँ पर आपको अमेजन पे मातृभूमि में भी ये फोटो महात्मा गांधी का वहीं से लिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे फोटो आपको अकेले दिखाई दे रहे हैं महात्मा गांधी के, जो जिस पर आप भरोसा तब करेंगे जब आप पुख्ता चेक करेंगे जाकर, और सोर्सेज से भी। तब आपको ये पता चलेगा कि ये फोटो अकेले का है, महात्मा गांधी का है, और जो यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ है। अब हम अगर बात करें वीडियो वेरिफिकेशन की, तो हम सबसे पहले तो जो प्रेजेंटेशन आपने देखा था, उसमें मैंने एक YouTube का टूल डाला हुआ है, माफ कीजिएगा, YouTube का एक लिंक डाला हुआ है। वो लिंक मैं कॉपी कर लेता हूं। ये लिंक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, ये फुलदीप जी, आपको गूगल नजर आ रहा है? हेलो? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अच्छा, अब मैं इनविड में गया, ये इनविड को मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा हुआ है, ओपन इनविड। ये देखिए, इनविड खुल गया। इसमें बहुत सारे हैं, मैग्नीफायर है, मेटा डाटा है, वीडियो राइट्स है, की फ्रेम है, थंबनेल है, ट्विटर सर्च है, बहुत उम्दा टूल्स है। तो यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ एनालिसिस का। एनालिसिस पे गए और मैंने यूआरएल को कॉपी किया और सबमिट कर दिया। मुझे पानी दे देना। ये आपका सबमिट करने पे ये देखें, वीडियो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लाइसेंस कंटेंट फॉल्स है। अपलोडेड टाइम 3 अप्रैल 2020 रात के 20:50। यूनिवर्सल टाइम कोड है, माफ कीजिएगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं IST में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। और ये यूआरएल हैं, आपने यहां गए और ये आपने राइट क्लिक किया तो फेक न्यूज डिबंकर आता है, और गूगल सर्च न्यूज में भी मैंने डाउनलोड कर रखा है। देखिए, तो फेक न्यूज में मैंने क्लिक किया और यहां पर रिवर्स में सर्च बाय गूगल में मैंने क्लिक किया। तो आप देखिए, तुरंत खुल गया वायरल वीडियो के फैक्ट चेक, सारी वेबसाइट खुल जाएंगी। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हो चुका है, बहुत से लोगों ने चेक करा है। अब देखिए, भास्कर है, लल्लन टॉप है, एशिया नेट न्यूज है, इन सभी ने इस वीडियो को झूठा करार दिया है। और आप आगे भी जाएंगे और इसमें बहुत सारा समय लगेगा, क्योंकि आप आराम से धैर्य पूर्वक आगे चेक करते जाएंगे तो आप ओरिजिनल वीडियो तक भी पहुंच जाएंगे कि ये वीडियो कहाँ का है, कब का है। अब यहाँ पर तबलीगी जमात के शख्स को गिरफ्तार, राइट। तो ये बहुत सारे आपको अलग अलग कहानियां नजर आएंगी। ये फेक न्यूज, यहाँ पर भी ये फेक न्यूज। आप ये बूम लाइव, एक बूम लाइव, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, ये लगातार चेक करते हैं और ये बता रहे हैं फिर ये कि video is a group of Muslim looking used utensil is being shared with the claim that this is being done in a mosque with an intention to spread coronavirus, and in fact more people, but Boom found that this video is old and has nothing to do with COVID-19. Watch this episode of Fact versus Fiction to know more about detail about the video.
राइट। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। और अब मैं अपने बात समाप्त करके आता हूं आप सभी के पास। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर दूं ताकि आप सबको मैं देख पाऊं। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैट ऑप्शन का यूज कीजिए क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि आप अराउंड 200 लोग अभी लॉग्ड इन है तो बहुत दिक्कत होगी। तो प्लीज सर आप चैट को प्लीज पढ़ते कुलदीप जी, रहिए। ये निमिष चैट सर, बॉक्स कहाँ से मैं जाऊंगा, मुझे बता पाएंगे? सर ये बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे 160 है, जैसे यहाँ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, फिर ये 99 प्लस दिखा रहा है, ये है चैट बॉक्स। आप सवाल पूछें। अभी तो चैट बॉक्स मुझे ब्लैंक दिख रहा है। हाँ जी, अब मुझे सवाल आ रहे हैं। जी आप सवाल पूछें सर। ये पूछा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड डिबंक डीप फेक न्यूज। देखिए जो डीप वीडियोस हैं वो डीप वीडियोस आपको मैंने बताया कि जो हमारे वॉच फ्रेम बाय फ्रेम करके जो टूल है, जो सॉफ्टवेयर है, आप उसमें उसका यूआरएल डालेंगे और फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। तो जो फ्रेम सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके हिसाब से वो एक एक फ्रेम आगे बढ़ेगा, 2 फ्रेम 4 फ्रेम। तो आप जितना कमांड देते जाएंगे उतना वो आगे बढ़ता जाएगा। तो उस हिसाब से आप उसको पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर ये लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा, आपको बहुत धैर्यपूर्वक आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये सवाल आ रहा है हाउ टू स्टॉप अनोइंग एड्स। देखिए विज्ञापन जो भी आ रहे हैं उसके लिए हमारे पास इंडिया में एक काउंसिल है, एडवर्टाइजमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। गूगल में सर्च करेंगे उसका एड्रेस, उसको मेल करेंगे, उसके ऑफिस में जाकर शिकायत करेंगे कि ये विज्ञापन भ्रामक है, तो आपको वो पता लग जाएगा। जी और सवाल पूछें आप तो। सर एक ऑडियो न्यूज को कैसे पता लगेंगे? काफी व्हाट्सएप ऑडियो वायरल हो जाते हैं। देखिए ऑडियो को पकड़ने के लिए कोई ऐसे टूल नहीं है, क्योंकि ऑडियो कोई भी, अब जैसे मैं अपनी आवाज बदल के कुछ भी बोल सकता हूँ, तो अब ऑडियो के लिए आपको अपने विवेक का काम करना पड़ेगा कि ये ऑडियो जो है किसी व्यक्ति ने किसी बड़े पर्सनैलिटी का ऑडियो बना के बोला है, ये भोजपुरी जबरदस्ती बना के बोली गई है, ये कहाँ से बोली गई है, या ऑडियो को पकड़ने का कोई ऐसा टूल नहीं है। क्योंकि ऑडियो कोई भी कहीं भी किसी का भी ऑडियो इस्तेमाल कर सकता है। और आजकल बहुत सारे कलाकार देश में हैं, तो वो कोई भी किसी भी तरीके का ऑडियो को पकड़ना आपके विवेक के ऊपर इस्तेमाल करता है कि आप ध्यान से उसको सुने और सुन के ये निर्णय लें कि ये ऑडियो सही हो सकता है कि गलत हो सकता है। दिस इज डॉक्टर कुमार फ्रॉम दून यूनिवर्सिटी। इज देयर एनी आइडियोलॉजिकल बायस इन फैक्ट checked by Indian agencies like Alt News etc. देखिए राजेश जी, ऑल्ट न्यूज जो भी चेक करता है, तो मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में यहाँ बोलने के लिए नहीं आया हूँ। जितने भी हमारे पास जो ऐसे इंजन हैं जो इन इंजन का इस्तेमाल करते हैं एजेंसी, वो चाहे ऑल्ट न्यूज हो, चाहे बूम लाइव हो, चाहे विश्वास न्यूज हो, चाहे गूगल न्यूज इनिशिएटिव हो, चाहे डाटा लीड्स हो, तो ये सारे हमारे पास जो इनविट सॉफ्टवेयर है, गूगल न्यूज इनिशिएटिव है, ये सारी ऐसे छलनियां हैं। आप जब आटा छानते हैं ना, छलनी में चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती ऊपर आ जाती है, आटा छानते हैं तो आटा नीचे आ जाता है, घुन ऊपर आ जाते हैं। उसी तरह ऐसे काम करते हैं टूल्स। तो गूगल न्यूज इनिशिएटिव, ऑल्ट न्यूज, ये माफ कीजिएगा, इनविट जो सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब डाटा व्यूअर है, तो ये सारे जो उसमें आपको सोर्स तक पहुंचा देंगे। आपको जो पुराने वीडियो हैं जहां से चोरी किया गया है वो पुराने वीडियो तक पहुंचा देंगे। संगीता जी ने सवाल किया है कि व्हाई डोंट आवर न्यूज चैनल हैव बीन एडवाइज्ड टू मेक इट कंपल्सरी टू चेक ऑल दी वीडियोस। तो मैडम संगीता जी, हमारे सारे जो न्यूज चैनल्स हैं, अखबार हैं, उसमें से बहुत सारों ने, बहुत लोगों ने जो है वो अपने लोग अपॉइंट कर लिए हैं। और अब ये मैंडेटरी होता जा रहा है धीमे धीमे कि वो हमारे न्यूज चैनल्स फेक न्यूज के बारे में पत्रकार अपॉइंट करें और वो संपादक या पत्रकार उन न्यूज को की तहकीकात करें। कोई और सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। विनोद जी का सवाल है हाउ वी सर्च व्हाट्सएप ऐप फेक ऑडियो न्यूज। तो वो ऑडियो न्यूज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ऑडियो न्यूज के लिए कोई ऐसा टूल नहीं है हमारे पास। हमको बहुत सावधानी से सुन के उसको इस्तेमाल ये सीखना होगा। और कोई सवाल मैं ऊपर से तलाश कर लेता हूँ। ये एक सवाल है आकाश कुमार जी का।
फेक न्यूज वायरल करने वाले और उसके फैलाव करने वालों को क्या हमारी सरकार सख्त कानून बनाकर रोकने में सक्षम है? क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? तो आकाश जी, मैं आपको बता दूं कि ये राज्य का विषय है, स्टेट का विषय है, और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उन्होंने अपने अपने राज्यों में कानून बना लिए हैं और हर राज्य में इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। हमारे पुलिस थानों में एक साइबर सेल होता है, तो साइबर सेल में जाकर आप FIR दर्ज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो व्हाट्सएप में फेक या वायरल फेक मैसेजेस आते हैं, तो वो या तो हमारे मित्र भेजते हैं या हमारे रिश्तेदार भेजते हैं, हमारे नजदीकी भेजते हैं, जिनके खिलाफ हम शायद FIR नहीं करेंगे। तो उनको हमें बताना होगा हाथ जोड़ के कि वो ऐसा ना करें, वो फेक न्यूज को आगे ना बढ़ाएं। सर, किसी ने पूछा है मेल इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा और बताइए। जी सर, माल इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा और बताइए। नहीं, माल इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ सवाल। अब जैसे देखिए, माल इन्फॉर्मेशन जो है वो कई तरीके की हो सकती है। जैसा हम लोग शुरू में भी बात कर चुके हैं कि हम कोई भी सूचना उड़ा देते हैं किसी को भी बदनाम करने के लिए। कोई भी हम कहीं से भी हमने फोटो उठा लिया, वीडियो उठा लिया, उस पर हमने अपनी इंफॉर्मेशन रख दी। जैसे आपको एक इंफॉर्मेशन मिली होगी कि एक सीमेंट का मिक्सचर होता है, जो कंक्रीट मिक्सचर होता है, जो हमारे बिल्डिंग बनाने में काम आता है। उस कंक्रीट मिक्सचर में आपने देखा होगा कि मटर के दाने रंगे जा रहे हैं और मटर के दानों को रंग के हरा किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि देखो मटर के दानों को रंग के हरा किया जा रहा है और ये आपके घरों में कैंसर करेगा, कैंसर परोसेगा आपकी रसोई में। तो आप उन मटर के दानों को अब उससे क्या हुआ कि वो पूरे दुनिया में जो हमारी मटर सप्लाई होती थी वो सप्लाई होना बंद हो गई। किसानों को लाखों का घाटा हुआ, विदेशी मुद्रा का हमको नुकसान हुआ। लेकिन हकीकत क्या थी? वो वीडियो में अगर आप उसको इनविड में सर्च करेंगे, आप पहले वो यूट्यूब में उसका सर्च करेंगे ग्रीन पीस कलरिंग, मटर के दानों को रंगा जाना, फिर वो कंक्रीट मिक्सचर का वीडियो निकाल के उसके URL को इनविड में डालेंगे। इनविड में आप सर्च करेंगे और उसके जो स्टिल फोटोग्राफ नीचे आएंगे, उसमें आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मटर के दानों को रंगा नहीं जा रहा है, वो गेहूं का या सोयाबीन के बीज का केमिकल वॉश है। उसको फंगस इन्फेक्शन से, सड़ने से बचाने के लिए केमिकल से रंगा जा रहा है, केमिकल से धोया जा रहा है, वो हरे रंग से रंगा नहीं जा रहा। तो न्यूज चैनल में गेट कीपिंग रूल के यूज के बारे में बताएं। तो श्वेता जी ये सवाल पूछ रही हैं। तो श्वेता जी, कोई भी जो न्यूज चैनल है उसमें जो गेट कीपिंग का जो अब रूल फॉलो हो रहा है कि वो न्यूज या कोई भी अखबार हो, कोई भी मैगजीन हो, कोई भी मीडिया हो, उसमें वो न्यूज जहां से आती है उस न्यूज के जो सोर्स होते हैं वो 3-4 तरीके के होते हैं। पहला सोर्स होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो सबसे बड़ा सोर्स है। दूसरा सोर्स हो सकता है डायरेक्ट हमारे देश का कोई मंत्रालय, कोई मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रपति भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई बड़ा सोर्स हो सकता है। तीसरा सोर्स हो सकता है हमारी देश की एजेंसीज, ANI, PTI, UNI, हिंदुस्तान समाचार, ये 3-4 एजेंसीज देश में काम करती हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारे पत्रकार, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं चैनलों में, वो जल्दबाजी में व्हाट्सएप की न्यूज को भी ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, या अपने पोर्टल में नौकरी कर ली है, आप नए पत्रकार हैं, अभी अभी पोर्टल में नौकरी करने गए हैं, आपके व्हाट्सएप में कोई सिर कटा कोई वीडियो मिल गया कि सिर काट के इससे घुमाया जा रहा है, कोई भी अर्जी फर्जी वीडियो मिल गया, आपने आनंद फानंद में उस वीडियो को बगैर चेक करे अपने पोर्टल में डाल दिया, जो गलत होगा। तो आप, अब चुनौती क्या है कि यहाँ पर हमारे, मैं किसी के बारे में किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कभी कभी न्यूज एजेंसीज भी गलत खबर प्रसारित करती हैं, जो वो वीडियो सारे चैनलों में ब्रॉडकास्ट हो जाता है और गलत खबर चली जाती है। जैसे शायद मुझे याद आ रहा है, ANI ने एक वीडियो वायरल किया, सारे चैनलों में साझा कर दिया 2 साल पहले, कि मुंबई पूना एक्सप्रेस वे पर ओले गिरे, और वो वीडियो सारे चैनलों ने दिखा दिया।
हमने भी देख लिया। जब हमने मुंबई फोन करके करा तो पता लगा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कोई ओले नहीं गिरे थे। ANI ने गलती से कोई गलत वीडियो हमारे चैनल को भेज दिया था। चैनल ने भी आंख मीच के उस वीडियो को ब्रॉडकास्ट कर दिया। फिर जब उस वीडियो को चेक करा गया इनविड में डाल के और जगहों पे डाल के, तो पता लगा कि उसमें जो कार चल रही थी उसका ड्राइवर जो है वो लेफ्ट हैंड में बैठ के कार चला रहा था। इंडिया में हम लोग राइट हैंड में बैठ के कार चलाते हैं। और उसके बाद उसमें जो कार की नंबर प्लेट थी वो नंबर प्लेट टर्की की थी। टर्की का नंबर प्लेट थी, वो इंडिया की नंबर प्लेट नहीं थी कार की। यानी वो टर्की का वीडियो था, टर्की में ओले गिरे थे, जिसको गलती से ANI ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर ओले गिरे हुए बता के चला दिया और सारे चैनलों ने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया। बहुत सारे चैनलों ने नोटबंदी के बाद खबर दी थी कि 2000 के नोट में मैग्नेटिक चिप लगी होगी। बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ये खबर कहां से मिली, इसका सोर्स क्या था। हाँ सर, इसको आपने चेक करा क्या? बताओ सर। तो ये अब मैं अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि काफी समय हो चुका है। फुलदीप जी, अब आपके हवाले। सबमिट नहीं हो रहा है। फुलदीप जी, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स पे कर दिया। हाँ सर। अब मुझे लगता है कि हम वाइंड अप करें, अगर कोई और सवाल ना हो तो। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आज के स्पीकर मिस्टर निमिष कपूर जी का। सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा। और बड़ा इंफॉर्मेटिव था और हमारे जैसे ज़्यादातर जो ऑडियंस है उसमें मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज इस बात से मिली है। और देखिए, जर्नलिज्म क्या है, ट्रू जर्नलिज्म जो हम अपने स्टूडेंट्स को अपने डिपार्टमेंट में भी पढ़ाते हैं, रिपोर्टिंग द फैक्ट्स ओनली। जहाँ भी बायस आ गया तो गलत है। प्लीज़ आपको सिर्फ फैक्ट्स ही रिपोर्ट करने हैं और सबसे सेफेस्ट तरीका है जो चीज़ आपने देखी है सिर्फ उसे रिपोर्ट कीजिए। जहाँ आप सोर्सेज पे जाएंगे, जैसे कि निमिष जी ने अभी बताया कि बहुत सारे प्रतिष्ठित जो मीडिया हाउसेज हैं, BBC भी कुछ गलती कर चुका है, ANI भी गलती कर चुका है, इवन सभी हमारे TV न्यूज़ चैनल्स हैं वो गलती कर चुके हैं। क्यों करते हैं वो गलती? कि जर्नलिस्ट अपने एंथुजियाज्म में टू गेट पब्लिश्ड अर्ली वो इन चीज़ों को, फैक्ट को वेरीफाई करने में आलस करते हैं और शायद उनको पता भी नहीं होता। इस तरह की भी बातें हैं। तो मैं चाहूँगा जितने भी आज स्टूडेंट्स और टीचर्स ने हमें देखा है इस लेक्चर को, वो अपने इस बात से सेंसिटाइज हों। और जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तो आशा है कि उनको काफ़ी, एक इमेज पे बड़ी दिक्कत थी उन्हें, टेक्स्ट तो सर्च हो जाता था, इमेज की बड़ी दिक्कत थी। बट देखिए, काफ़ी सारे सर ने हमें सॉफ्टवेयर भी बताया जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब मैं अपनी स्क्रीन को दिखाता हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, एक इसमें जब आप सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करते हैं तो एक दिक्कत आ सकती है। जैसे अब आप निमिष जी, आपको ये गूगल दिख रहा है, गूगल इमेजेस जी। अब देखिए, गूगल इमेजेस आ गया। अब मुझे यहाँ सर्च करना है, मैंने वर्ड टाइप किया इडियट, तो क्या दिखाता है? अब देखिए, इडियट पे दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को इडियट है नहीं, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो हो क्या रहा है कि सॉफ्टवेयर्स को भी फोकस किया जाता है। जैसे कि एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलेंगे तो वो भी सच जैसा लगने लगता है। तो गूगल क्या कर रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से देख रहा है, सबसे ज़्यादा इडियट किसी को कहा गया है तो इनको कहा गया है। तो ये एक फेक तरह का न्यूज़, मतलब कि कितनी डीप रूटेड है फेक न्यूज़ इंडस्ट्री, आप इससे समझ सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट और वहीं की कंपनी है जिनका ये सर्च इंजन है, वो इनको इस तरह शो करता है। अब एक और वर्ड हम डालते हैं इसमें, मैंने वर्ड डाला 56 इंच, तो देखिए क्या दिखाता है। अब देखिए, 56 इंच पे मोदी जी को ये दिखा रहा है, जबकि 56 इंच पे इसे कोई इंच टेप दिखाना चाहिए था, कुछ दिखाना चाहिए था। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इस वर्ड को भी इतना यूज किया गया है। जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो मैक्सिमम जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है उसको रिटर्न करता है। तो यहाँ भी हम फूल हो सकते हैं जब हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, कि अगर किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह वायरल किया जाता है तो इसलिए भी हमारे जर्नलिस्ट उससे फेल कर जाते हैं कि भी हो सकता है ये सच हो, क्योंकि इतने सोर्सेज पे है, गूगल पे टॉप रिजल्ट है,
तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप इमेजेस को भी सर्च कीजिए, फैक्ट्स को हमेशा वेरीफाई कीजिए, हमेशा। अभी एक हफ्ते पहले की खबर है कि पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने लिखना चालू कर दिया कि भारत ने हम पर आक्रमण कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उनकी पाकिस्तान एयरफोर्स की कुछ एक्सरसाइज चल रही थी। तो और अभी इंडिया चाइना का भी कुछ स्टैंड ऑफ है, उसमें भी काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया के द्वारा हमारे तक परोसी जा रही है, जो कि कुछ बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप कभी जाओगे नहीं LAC पे देखने के लिए, कोई टीवी चैनल कहेगा इतना इनकर्जन है, कोई कहेगा उतना खदेड़ दिया, तो आपको कभी भी ये चीज़ें सच नहीं मिल रही होती। तो इसलिए इन पे ब्लाइंडली कभी फेथ नहीं करना चाहिए। और हमारे मीडिया पे प्रेशर रहता है कि भाई हमें चीज़ें दिखानी है, तो उसमें हमारे मीडिया पर्सनल्स गलती करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 सिर्फ फैक्ट्स को रिपोर्ट कीजिए, जो सच है वही बोलिए। आप हो सकता है कम पब्लिश होंगे, बट जितने हों, कभी आप पर कोई उंगली ना उठा पाए कि आपने किसी पार्टी के लिए लिखा या किसी विशेष प्रयोजन के लिए लिखा। हमेशा सच बोलेंगे, आप एक अल्टीमेटली रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता है, और आप सबको भी यही अपील करता है, जितने भी हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर और जितने भी जर्नलिस्ट हैं, प्लीज़ सच ही दिखाइए। और सच आप तभी कर सकते हैं जब 100% श्योर आप उसी चीज़ के लिए हो सकते हैं जहां आप थे। कभी भी सोर्सेज पे आप जाएंगे या दूसरे मीडिया पे जाएंगे तो यू मे बी टेकन फॉर ए राइड, और बहुत उसमें बेइज्जती होगी। अब पाकिस्तान की हाई कमिश्नर थी मलिया लोधी, उन्होंने UN में एक फ़ोटो दिखाई कि भारत जो है बुलेट इंजरीज करता है लोगों पर, और ये देखिए ये फ़ोटो है। फिर वो फ़ोटो को रिवर्स इमेज सर्च किया वर्ल्ड मीडिया ने, तो पाया कि वो किसी दूसरी कंट्री की थी। तो इस तरह कंट्रीज भी इवन बड़े स्टेज पे भी बदनाम होती हैं, ना सिर्फ जर्नलिस्ट। तो सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत आभारी हूँ, आपने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। एंड I express my gratitude to Honorable Vice Chancellor Professor R.C. Kohad for constant motivation, and I am also grateful to Professor Sanjeev Kumar, Dean, School of Journalism, School of Humanities and Social Sciences. I enjoy support of our faculty members, namely Dr. Surinder, Dr. Bharti, Shri Alekha and Shri Deshikant. Today Alekha has helped us more than everybody. So thanks Alekha. And our students are always eager to help, and I hope they will become responsible journalists. And I thank again everybody for participating in this. We would be organizing more such webinars. And thank you, Mr. Nimish, a long time friend of mine. मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर मुझे आप सब लोग सुन पा रहे हैं। सर सुन रहे हैं सर। सर अभी वेबिनार का आपने समापन कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। एक छोटी सी सूचना रह गई थी। अभी हम लोग जो भी लोगों ने हमें अटेंड किया है, उसमें से जितने भी लोग लगभग सभी पत्रकार हैं या पत्रकारिता के छात्र हैं या शिक्षक हैं, उन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आप लोग हैं। तो आपको एक फॉर्म अभी दिया जाएगा आपके ईमेल पर या आपके व्हाट्सएप नंबर पर। तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अगर आपको गूगल से जुड़ना है तो, बल्कि आप सभी जुड़े, मेरा ये निवेदन है। आपको फीडबैक फॉर्म भरना ही है, क्योंकि आपने ये वर्कशॉप अटेंड की है। तो उसके लिए आप मेरा नाम नोट कर लें। आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल। तो अपना आप नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर भरेंगे, और आपसे पूछा जाएगा ट्रेनर्स नेम। तो ट्रेनर्स नेम है निमिश कपूर, NIMISH निमिश कपूर। आपसे पूछा जाएगा इसकी कार्यशाला की ड्यूरेशन कितनी है, तो आप ड्यूरेशन भरेंगे 1 घंटा, 1 आवर। और उसके बाद आपसे आज की डेट पूछी जाएगी। आज 13 जून है, 13 जून 2020। तो उसमें कभी कभी जून पहले आ जाता है, तो 6/13/20 आएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और उसमें आप सेट का बटन दबाएंगे तो आज की डेट सेट हो जाएगी। उसमें 1 घंटा ड्यूरेशन भरेंगे, और आपको उसमें 6 सेशन दिखाई देंगे कि 6 सेशन के नाम आएंगे। तो उसमें से मैंने 3 सेशन आपको आज कवर किए हैं। पहला मैंने कवर किया है गूगल न्यूज का परिचय, GNI, गूगल न्यूज इनिशिएटिव का परिचय, GNI इंट्रोडक्शन। दूसरा फोटो वेरिफिकेशन, और तीसरा वीडियो वेरिफिकेशन। तो GNI परिचय, फोटो वेरिफिकेशन एंड वीडियो वेरिफिकेशन पे आप टिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको रेटिंग, आपको सेशन कैसे लगे। बहुत अच्छा लगा तो 5 नंबर, और नहीं अच्छा लगा तो 4, 3, 2, 1 जो भी आपको देना हो। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि कार्यशाला को और अच्छा कैसे बनाया जाए। तो उसमें आपके कुछ सुझाव मांगे जाएंगे। तो आपको जो भी सुझाव देने हैं वो आप सुझाव देंगे कि ये कार्यशाला गांव स्तर पे हो या शहर स्तर पे हो, पत्रकारों के लिए हो, जो भी आप सुझाव देना चाहें, आप सुझाव देने के लिए आजाद हैं। और उसके बाद आप इसको सबमिट का बटन दबाएंगे और सबमिट कर देंगे।
तो ऑनलाइन ये आपका जो डाटा है, आपका नाम है, वो गूगल न्यूज इनिशिएटिव के पास चला जाएगा और फिर जो भी नए कार्यक्रम होंगे वो आपके ईमेल पे आपको साझा किए जाएंगे। तो आप सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म भर दें। आपको फुलदीप जी और उनकी टीम आपके ईमेल पर या मोबाइल पर एक ऑनलाइन फॉर्म का लिंक भेजेगी। वो लिंक खोल के आपको उसको भरना है, आराम से आपके मोबाइल पे भर जाएगा, केवल 2 मिनट का समय लगेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे और है, एक यूनिवर्सिटी का भी फीडबैक फॉर्म है, सर का है वो अलग है और हमारा है वो अलग है। तो अब मैं एक नेक्स्ट मेल आपको कर देता हूँ थोड़ी देर में, जिसमें सर का भी लिंक होगा और यूनिवर्सिटी का भी लिंक होगा। ये दोनों फीडबैक आपको भरने हैं और आपको हफ्ते 10 दिन में इसका जो अटेंड आपने किया है इसका सर्टिफिकेशन मिलेगा। जो लोग नहीं अटेंड कर पाए कोई बात नहीं, उनको तो नहीं दे सकते हम। जिन्होंने एक्चुअली अटेंड किया है उसी को हम सर्टिफाई करेंगे। लेखा सर, आप मीटिंग को आप प्लीज क्लोज कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।